we'll study what UI UX is, the difference and how they go together, and then उसके बाद Figma के working के बारे में बताएंगे तुमको कैसे काम करता है, what all tools are there and how to use them, and we'll show you how to create some basic stuff and then give you some tasks to do at the end of the day. So what is UI UX? UX design and UI design, both of them go hand in hand together, yet they are different. UX design is basically the form, it reflects the function, and it is basically the user experience. You design the experience for the user. How if a particular thing is to be done, how will the user go about it? What will be the user experience? पहले क्या step आएगा, उसके बाद next step क्या होगा, कैसे कैसे proceed करेगा? That is UX design. And UI design is basically the skin, as you say it. It is the visual aspect of the things, what it looks like. As beautifully written here, the spoon works well for a soup, and that is the function of the spoon. It is the UX design, and the UI design is how the spoon looks, कि उसका जो वो है, like the handle part वो कितना बड़ा होगा, how what it will look like, the color and everything, that is UI. Now, as I said earlier, UI design refers to the visual elements of a digital product. It is the space where interactions between humans and the application occurs. What you see when you open an app is UI design. It is an integral aspect of design, and it consists of two major parts. That is visual design, which conveys what the application or the web page or whatever you're designing, what it looks and feels like. And the second part is interaction design. That is the functional and logical organization of the elements. What our goal as a designer would be to create a user interface that is easy, efficient, and enjoyable for the users to interact with a product. We prioritize the user's visual experience, what the users see. It should be soothing for the eye. It should, it should be an experience in itself. It should, and just not visually appealing. At the same time, it should be functional, reliable, and enjoyable, as I said. And it should minimize the effort the user has to put in when interacting with the application. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि I am on an e-commerce website, मुझे एक ड्रेस पसंद आई and I'm going haywire looking for the button की वो button कहाँ है भाई, how do I add this to my cart or how do I buy this? The UI designer of that application should make sure that the button to add to cart or view the details is clearly visible to the users, and it makes them easy to access the product and minimize the effort. So there, for this purpose, designers use methods of user-centered design approaches. We, put ourselves in the shoes of the users and think what the user would be, user क्या सोच रहा होगा, कैसे they will, मतलब अगर मैं कोई product use कर रही हूँ तो what do I expect, मेरी क्या expectations रहेंगी कि इस website में क्या क्या options होने चाहिए, how they should be arranged जिससे मैं उसको अच्छे से access कर पाऊँ. We conduct researches, we conduct interviews and a lot of stuff, and we refer to a lot of things before finally diving into the design process. We need to learn about the target audience and ensure that the visual aspects we are using and introducing are well suited for them. And it is very important to make the user interface aesthetically pleasing at the same time. मतलब वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि you are only focusing on the functioning part of it. अगर दिखने में अच्छा नहीं है तो it will reduce your audience. That is very obvious. You are more likely to visit a page which is more aesthetically pleasing और जो दिखने में सुंदर होगा, rather than a page that is not good looking or that does not suit your eyes. So next slide, Manav. Yes. Now, these are some elements of the UI design. First of all is grid layouts. Grid layouts help us in organizing the system and positioning of the visual elements of the user interface. And
Good organization and positioning are key components to creating a great web or mobile experience. Designers rely on layouts to introduce structure in their design and give users a predictable rhyme as well as a sense of familiarity. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी बटन है, scattered है, कोई proper alignment नहीं है, कोई element कहीं जा रहा है, कोई text कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अच्छा दिखने के साथ साथ it should also be well structured and good organization should be there. So grids help us in doing that. They work as a framework that helps product teams to arrange the UI elements in a way that allows maintaining good visual balance from page to page. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक पेज है उसमें सारे एलिमेंट्स एकदम क्लटर कर दिए, एकदम घिच पिच करके एकदम ठूस दिए उसमें, तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, कि क्या लिखा है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा पेज ही खाली है, देयर इज ओनली जस्ट वन और टू एलिमेंट्स. That is poor arrangement of elements. A grid helps us in arranging them properly and maintain the visual balance of the page, as we call it. But the white space and elements should be equally, not equally, should be arranged in a balanced manner. ना ज़्यादा white space, ना ज़्यादा elements. सबका एक proper balance maintain होना चाहिए. And that is where grids come in use. They help us to create more consistent and appealing user interfaces. अगर जब वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स की बात करें तो ग्रिड्स आर बेसिकली अ सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, या तो कॉलम्स में डिवाइड कर लो द एंटायर फ्रेम यू आर हैविंग. अभी ग्रिड्स तुमको यूज करके दिखा देंगे जब हम फिग्मा पे जाएंगे कि व्हाट ग्रिड्स को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं. एंड बेसिकली देयर सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. ग्रिड वर्ड से ही समझ गए होंगे तुम, टैबुलर टेबल की तरह उसको डिवाइड कर देते हैं द एंटायर पेज. And it helps us in arranging the elements and proper spacing between them. And they're basically a framework or backbone that helps you to align, position, and arrange the content. Why should you use grids? Because better organization of your elements, as I said, and it also helps in easy collaboration. मतलब suppose if I and Manav, or I, Karthik and Manav, or the entire design team is working on a product or a project together, तो मैंने कोई एलिमेंट कहीं अरेंज किया और मैंने सोच लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे स्पेसिंग देनी है. आई थॉट ऑफ इट इन माई माइंड. अब इन लोगों को कन्वे नहीं होगा ना अंटिल आई टेल देम कि कहाँ पे अरेंज करना है, क्या कैसे करना है. बट इफ आई यूज ग्रिड्स तो उनको दिखेगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर शी इज प्लानिंग, दिस इज द बैकबोन, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू अरेंज द एलिमेंट्स. So they help us in that also. And the last thing, they keep all the page layout very consistent and good to look at. It तुम्हारे दिमाग में visual hierarchy enhance होती है उससे, and it also eases the process of accessing a application or a web page. Second thing is design systems. Now what इसमें is एक और चीज ऐड करनी थी, लेआउट्स का. लेआउट्स लाइक तुमने वेब डिजाइन करा होगा, वेब बनाया होगा, तो उसमें रिस्पॉन्सिव लेआउट जब बनाते हो तो ग्रिड्स के हेल्प से वो काफी आसान हो जाता है. हाँ. तो दिस इज आल्सो एन एडिशनल फीचर ऑफ ग्रिड्स. Okay. So now we'll move on to design systems. Now, what is a design system? Design system is basically the collection of reusable UI components. मतलब suppose मैं किसी suppose I design a website. तो उस वेबसाइट में क्या कलर्स यूज होंगे, क्या फॉन्ट्स यूज होंगे, क्या बाकी एलिमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट शेप ऑफ buttons, what typography, what sizes, the entire collection of all the UI elements, of all the UI components. I'll combine it into one and create a design system for that particular website or particular design. तो इस इन अ डिजाइन सिस्टम हम यूआई एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, सच एज बटन्स, टेक्स्ट एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स, दैट वी आर श्योर कि आगे इफ वी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, अगर हम इसको आगे what do you call it, आगे बढ़ाते हैं, if you create new stuff in it, new pages, new sections, तो ये सब चीजें रीयूज होंगी. उन सब चीजों को हम एक डिजाइन फाइल में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिजाइन सिस्टम. इट मेक्स द वर्क फ्लो वेरी इजी, बिकॉज जरूरी नहीं है कि तुम इस
उस पे काम कर रहे हो तो अगली बार भी तुम ही काम करो, मे बी तुम्हारा कोई दूसरा टीममेट काम करे, या मे बी तुमने बीच में कोई और प्रोजेक्ट उठा लिया या वट एवर इट इज, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू गेट बैक ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ एक जगह collected होगा and it would be, you know, very organized in that manner. And one of the major benefits of a design system is consistency, and consistency is key when you are designing. So having a design system that is things like colors, typography, spacing, and any such other items or UI elements that you've used in your design ensures consistency along the design files, and it also makes the design workflow smoother, faster, and also makes collaboration way easier. हम्म, Now the aim of a good UI, what do we think of in our minds? Like हम कोई भी डिजाइन करने से पहले what do we have as the basis कि अच्छा हमको एक ये डिजाइन करना है, तो what do we have to keep in mind? What are the basic aims जो हम target करते हैं when you are designing a good user interface? The topmost thing is usability and thinking from the user's perspective. Usability involves navigation of where the elements are located, familiarity, consistency, error prevention, feedback, clarity of the design, flexibility, efficiency, and a lot of other things. मतलब you have to think कि जो मैं design बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ या कोई भी जो design बना रहा है, how usable that is. It should be properly navigable. ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा है where things are. बिल्कुल there's no absolutely no structure, or there's absolutely no set way of how things are arranged. The user should not feel like कि मेरे को इस ऐप में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. They should feel familiar with the design कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे. देखा होगा whenever you open an app, initially थोड़ा नया लगता है, but you're able to figure your way around it if it's a well designed app. तुमको समझ आता है अच्छा ये यहाँ पे ओ प्रोफाइल बटन, यहाँ पे तो सेटिंग्स उधर होगी. You should be familiar with the concept. ऐसा नहीं कि generally your profile settings, as we know, are located in the profile section. If an app has a profile section, तो edit करने का option वहाँ होता है, ये हम सबको पता है. अगर मैं एकदम से change करके उस edit वाले option को home पे या कहीं और किसी section में that is completely unrelated उधर locate कर दूँ, तो that would not make sense and that would be very difficult for the users to locate. So familiarity is also a very important thing to keep in mind. Another one is consistency. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा एक ऐप है उसका एक सेक्शन एक तरीके से डिजाइंड है and the other section is totally बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइंड. मतलब अगर मैंने कहीं पे बिल्कुल soft colors, I've used pastel color palettes and soft round corners and a very minimal font in one section, and दूसरे section में I start using reds and yellows and very, you know, भड़कीला सा font and एकदम very opposite design elements, that would also be an example of a very bad design, and that is not how you design things. Consistency is one thing that you should always keep in mind. Then the design should be visually clear. It should not be cluttered. The user should know what they're seeing, and it should be, you know, it should make sense to them. समझ आना चाहिए क्या चीज कहाँ है. ये नहीं कि there's a lot of confusion, ये बटन क्या कर रहा है नहीं पता, ये यहाँ पे क्यों है नहीं पता. It should all make sense. And then there's flexibility and efficiency. Responsiveness is another one thing that is जिस पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है आजकल, because we have mobile devices and tablets and other such devices in use. तो the sites जो भी हैं they are responsively designed. Responsive design means कि अगर कोई website जो जैसे डेस्कटॉप के लिए डिजाइन होती है ऐसी मोबाइल या टैबलेट्स के लिए भी डिजाइन होती है, बट द डायमेंशंस एंड अदर थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि तुम सेम डायमेंशंस में उसको यूज नहीं कर सकते हो फॉर बोथ द स्क्रीन्स because of the difference in screen size and also the accessibility. So responsive design is a design that evolves itself and adapts itself with changing devices and screen sizes. And the second thing is delightfulness. Usability के साथ साथ you also have to make sure that the design is visually appealing to the user, वरना वो they won't engage with it. अगर कोई चीज देखने में अच्छी नहीं है तो why would you waste your time? Like think naturally. अगर कोई वेब पेज दिखने में सुंदर है और दूसरा नहीं है तो you are more likely to visit the web page that is more visually appealing, that is more delightful, that engages you in the entire process, that captures your attention.
So usability, delightfulness, both of these things are what we target when we design a user interface. Manav, continue. हाँ, तो यूआई में बता दो, किसी को कुछ डाउट्स हो तो कवर कर लेंगे अभी, उसके बाद यूएक्स स्टार्ट करते हैं। फीडबैक, तो फीडबैक क्या है? जैसे कि तुमने कुछ डिजाइन करा है, तो अब तुम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तुम्हारी टीम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तुम्हारे जो तुम बना रहे हो अकॉर्डिंग टू यू दैट इज द बेस्ट, लेकिन हो सकता है कि वो यूजर के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे कुछ कमी हो, तो वो फीडबैक होता है। लाइक तुम यूजर से या जो तुम्हारा ऐप या फिर डिजाइन यूज कर रहा है, तुम उससे रिव्यू ले रहे हो कि क्या क्या उसे प्रॉब्लम फेस हुई, क्या उसका प्लस पॉइंट है, मतलब क्या उसे अच्छा लगा उस डिजाइन में, वो सब। हाँ, basically you cannot review your own work. So it's basically taking the point of view of your teammates or the user into consideration and addressing it. श्रेयो, एक है यूजर एरर प्रिवेंशन, वो बताते हैं। It's हिंदी में basically थोड़ा रिपीट कर दो। क्या? हिंदी में रिपीट कर दो, मतलब जो बताया था ना, एक बार रिपीट कर दो वही हिंदी में। अच्छा, तो हाँ, एरर प्रिवेंशन इज एक सेकेंड, मतलब इट, जैसे कार्तिक बोल रहा है, इट्स लाइक एरर फिक्सेशन, मतलब जो भी हाउ वट एवर जो भी एरर्स आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, हाउ यू विल एड्रेस इट इन योर डिज़ाइन, उसको तुम कैसे एड्रेस करोगे और कैसे चीज़ें करोगे, वो सब दैट कम्स अंडर एरर प्रिवेंशन. यू हैव टू प्रिवेंट ऑल ऑफ दैट स्टफ, यू हैव टू उसको पूरे को एड्रेस करना, ठीक करना, दैट कम्स अंडर एरर प्रिवेंशन. अच्छा, विल कंटिन्यू, हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे. नेविगेशन, जैसे मैंने बताया, नेविगेशन मतलब कोई चीज कहाँ पे है, उसको हाउ विल यू रीच दैट, मतलब कोई बटन है तो उस तक पहुंचना शुड बी इजी फॉर द यूजर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर को बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं ऑन देयर एंड टू फाइंड अ बटन. उसको सामने दिखना चाहिए जो भी प्राइमरी टारगेट है या जो भी एक्शन है, जो सीटीए बटन्स होते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन को के अराउंड नेविगेट करना, गोइंग फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर और गोइंग टू कम्प्लीटली न्यू सेक्शन शुडंट बी डिफिकल्ट टू नेविगेट. इजीली पहुंच जाना चाहिए वो. इसलिए इतने अच्छे से, मतलब जब यूआई डिजाइन कर रहे हो तो ये चीज अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर तुम जिस तरीके से डिजाइन कर रहे हो, जिस तरीके से तुम एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हो, वो नेविगेशन को वो तो नहीं कर रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं बना रहा है फॉर द यूजर. नेविगेशन इज बेसिकली गोइंग अबाउट द ऐप, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या बेसिकली उसी पेज पे नीचे नेविगेट करना. एनी मोर डाउट्स? तो कंटिन्यू कर एरर प्रिवेंशन. एरर प्रिवेंशन मतलब जो भी एरर आ रहे हैं, हाउ विल यू एक्सेस दैट. उनको पहली बात तो यू हैव टू प्रिवेंट देम एट योर ओन एंड, मतलब अपने तरफ से पहले तो कीप इन माइंड कि सब कुछ इज परफेक्टली डन. फिर उसके बाद जो भी फीडबैक्स है, जो भी एरर्स है, वट एवर यू, जो भी कुछ बैक एंड फोर्थ चीजें जा रही हैं, उनको प्रिवेंट करना एंड टू मेक श्योर कि सब कुछ प्रॉपरली एड्रेस हो जाए. दैट इज एरर प्रिवेंशन. एरर फिक्सेशन समझ लो, जैसे कार्तिक ने ऊपर बताया. डिलाइटफुलनेस इज अट्रैक्टिव. हाँ, यू कैन से दैट, अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग एट द सेम टाइम. डिलाइटफुलनेस का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आजकल आप देख रहे हो उसमें गेमिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं सब, लाइक रिवॉर्ड पॉइंट्स या कुछ देते हैं अगर तुम टास्क वगैरह कुछ करते हो, तो दैट इज डिलाइटफुलनेस. तुम उसमें एंगेजिंग तुम्हारा एक्सपीरियंस है, हाँ, तुम यूजर उस इन्वॉल्व ऐप को होना बार बार चाहिए. यूज करोगे. तो कंटिन्यू करते हैं आगे. तो यूएक्स, यूएक्स क्या है? यूएक्स जैसे कि अभी यूआई कवर करा हमने, तो यूआई जस्ट इज जस्ट अ प्रोसेस, लाइक इट इज अ स्टेप इन यूएक्स.
So UX design is a design process where the objective is to design a system that offers great experience to the users. It involves or it contains many steps, of which UI design is one of the steps. It involves feature steps like usability, accessibility, and human computer interaction. Like ऐप तुम्हारा यूजफुल है या मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो यूजफुल है, उसका यूटिलिटी क्या है, उसकी यूजिबिलिटी क्या है, वो सब फीचर्स ध्यान में रख के यूएक्स डिजाइन करते हैं हम। तो यूएक्स डिजाइन का एम क्या रहता है? हमें एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट बनाना है जिसका रेलेवेंट यूजर एक्सपीरियंस रहे। मतलब ऐप काम का भी हो, मतलब प्रोडक्ट काम का भी हो और आसानी से यूज करने में भी आ जाए। So it is concerned with the entire process of product manufacturing right from start. Like तुम उसका रिसर्च से स्टार्ट करते हो यूएक्स को, और जब तक वो डेवलप नहीं होता, प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे है, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ यूएक्स। ऑल्सो यूएक्स कंटेन्स अदर फीचर्स लाइक जब प्रोडक्ट तुमने बेच दिया तो उसके बाद तुम कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर यूएक्स। लाइक सैमसंग का तुम एग्जांपल ले सकते हो। सैमसंग का काफ़ी अच्छा यूएक्स है क्योंकि उसके जो रिटेल स्टोर्स हैं, लाइक कस्टमर क्या बोलते हैं ना, लाइक अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो आसानी से कोई भी स्टोर मिल जाता है तुम्हें सैमसंग का, तो ये उसके पार्ट से एक अच्छा यूएक्स है। तो रोल ऑफ यूएक्स डिजाइनर क्या है कि द यूएक्स डिजाइनर अंडरस्टैंड्स व्हाई, व्हाट एंड हाउ ऑफ अ प्रोडक्ट। लाइक ही अंडरस्टैंड्स व्हाई वुड यूजर्स कंसिडर योर प्रोडक्ट। लाइक तुम्हारे ऐप में या इंटरफेस में ऐसा क्या अलग है जो लोग तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करें। देन यू अंडरस्टैंड व्हाट, व्हाट वैल्यूज द प्रोडक्ट ऐड टू द यूजर्स लाइफ। लाइक क्या फंक्शंस हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर व्हाट। देन उसके बाद हाउ ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट द थिंग्स दैट यू फाउंड इन द फर्स्ट टू स्टेप्स। लाइक वाई एंड व्हाट में जो कवर करा उसको इम्प्लीमेंट करना इज हाउ। देन उसके बाद आता है कि यूएक्स डिजाइन का फोकस क्या है। तो यूएक्स डिजाइन इज अ यूजर सेंटर्ड अप्रोच। लाइक वी हैव टू सी फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। लाइक हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं करते हैं जो हमें यूज करना है, रादर हम एज अ यूजर के पर्सपेक्टिव से हम डिजाइन करेंगे। इसके बाद अगर मतलब यूएक्स डिजाइन को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। लाइक तुम ऐसा समझ सकते हो कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम रिसर्च टू बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप, दैट इज ओनली यूएक्स। तो इसके बाद कवर करते हैं लाइक यूएक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इज यूएक्स पिरामिड। तो यूएक्स पिरामिड क्या है? इट इज अ 5 लेयर पिरामिड दैट सिग्निफाइज द प्रोग्रेशन, efficiency and maturity of UX. लाइक तुम यूएक्स को किस रेंज में डाल सकते हो, लाइक कितना अच्छा यूएक्स है, दैट इट इज अ स्केल काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें कई टर्म्स लाइक यूटिलिटी, यूजिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड ब्रांड कनेक्शन। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज लाइक प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से, इट इज अ रियल प्रॉब्लम। लाइक तुम कुछ भी बना के अगर ऐप प्रेजेंट कर रहे हो या प्रोडक्ट डाल रहे हो तो वो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दैट इज द फाउंडेशन। लाइक अगर यही नहीं है तो ऐप का कोई सेंस नहीं बनेगा, मीनिंगफुल नहीं है तुम्हारा प्रोडक्ट। देन कम द यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी इज लाइक जैसे कि तुम्हारा इंटरफेस यूजेबल है, कि तुम्हें बटन आसानी से मिल रहे हैं, तुम्हें मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कैन यू गेट दैट इजीली फ्रॉम द इंटरफेस, दैट कम्स अंडर यूजिबिलिटी। Then desirability. Desirability is like why people should use your app or product. जैसे कि UI में कवर करा कि aesthetics अच्छे होते हैं तो people engage to your site, और delightfulness is also part. So desirability is like that. Then comes aesthetics. Aesthetic is pure UI, like product दिखता कैसा है, उसका color coordination क्या है, वो सब that comes under aesthetics. And
देन कम्स द ब्रांड कनेक्शन, लाइक जैसे कि तुम एयरबीएनबी के एग्जांपल ले लो, तो उसका एक पर्टिकुलर कलर फॉर्मेट है, लाइक कलर सिस्टम है। तो तुम जो भी साइट पे जाओगे, लाइक उसका ऐप यूज करोगे या उसके वेबसाइट यूज करोगे, यू कैन सी अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक सिमिलर कलर्स मिलेंगे, सिमिलर काइंड का यूआई मिलेगा। तो दैट इज ब्रांड कनेक्शन। मानव, could you please यूजेबिलिटी रिपीट usability? कर दो। तो यूजेबिलिटी इज लाइक जैसे कि तुम ऐप यूज करते हो आजकल, कुछ ऐप्स का कंसेप्ट क्या रहता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, कि तुम्हें 4-5 बार क्लिक करके पहले इस स्क्रीन पे जाना है। जो चीज़ मतलब मेन स्क्रीन पे होनी चाहिए, वो मेन स्क्रीन की जगह हम किसी बात की स्क्रीन पे डाल रहे हैं। मतलब जिस जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के हम आए थे ऐप पे, वो हमारा होम स्क्रीन पे फुलफिल नहीं हो रहा है। हम उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करके आगे पीछे, मतलब we have to work on the app to get to the main point. मतलब बेसिकली जो प्राइमरी एक्शन है जिसके लिए वो ऐप डिजाइंड है, वो तुम्हारे लिए फुलफिल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे सपोज मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका प्राइमरी फंक्शन इज टू सेल द प्रोडक्ट्स, और यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो टू बाय द प्रोडक्ट्स। अगर एक ऐप का डिजाइन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मी टू बाय दैट प्रोडक्ट, आई हैव टू सर्च हाई एंड लो टू फाइंड दैट ऐड टू कार्ड और बाय नाउ बटन, तो दैट इज बैड यूजेबिलिटी, खराब यूजेबिलिटी है फिर तो फिर उस ऐप की, that is usability. It should be easy for me to buy products from an e-commerce website. Okay. Brand connection भी बता देना मानव एक बार, and desirability. Brand connection is like जैसे कि तुम फ्लिपकार्ट का ऐप ले लो, लाइक एक ऐप ले लो और एक वेबसाइट ले लो। तो उसका कलर स्कीम जब तुम वेबसाइट पे देखोगे, उसका यूआई तुम वेबसाइट पे देखोगे, तो सिमिलर काइंड का ही जो यूआई है तुम्हें ऐप पे ही मिलेगा। लाइक कलर स्कीम सेम है, ब्लू एंड येलो, एंड यूआई भी ऑलमोस्ट सेम है। लाइक कुछ कुछ जगह पे चेंज है, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दैट इज ब्रांड कनेक्शन। लाइक तुम्हारा यूजर जो है वो देख के समझ जाए कि ये इस ब्रांड से रिलेट कर सके, वो ब्रांड हाँ, कनेक्शन राइट। कहलाएगा। यू आर राइट नीतीश, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही है। इट क्रिएट्स एन आइडेंटिटी इन योर माइंड। तुम उसका वेब पे देख लो, फोन में देख लो, किसी भी तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म एक्सेस कर लो उसका डिजिटल, इट वुड हैव अ सिमिलर सेट ऑफ यूआई एलिमेंट्स। वो सेम डिजाइन सिस्टम यूज करेगा जैसा हमने पढ़ा था। डिजायरेबिलिटी लॉज, ऑल्सो। ये यूएक्स पिरामिड, मतलब इतना घबराओ मत इससे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेसिक समझ लो। लाइक हाँ, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी, दीज आर फाउंडेशन, कि ये तो होना ही चाहिए मस्ट एक ऐप में, या फिर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके यूएक्स में यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी आर मस्ट। बाकी ये सब अगर कम भी हो तो चलेगा। difference between usability and utility is how useful is the function that you are addressing। मतलब जो भी तुम चीज को एड्रेस करे हो वो कितना, हाउ डू आई से, मतलब कैसे वो समझाऊं। मतलब किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि फालतू में तुमने कुछ भी बना दिया, कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई सेंस ही नहीं है, इट डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो वो यूटिलिटी नहीं है फिर उसकी। ठीक। एंड यूजेबिलिटी वही कि प्राइमरी तुम एक्शन जो है मतलब उस ऐप का ऐप वो को कितने आसानी से इजीली यूज कर, फुलफिल हो रहा है। हाँ। हम्म, ऐप को कितने आसानी से यूज कर पा रहे हो, लाइक कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है बटन यहाँ पे होता है तो वहीं पे मिल रहा है तुम्हें बटन, दैट ऑल। लाइक बटन से तुम्हें पता है कि इस बटन से क्लिक करके मैं यहाँ पे जाऊंगा, और वही हो रहा है, तो दैट इज अ यूजेबल ऐप। हम्म। So it will be beneficial for the user, that is easy to use. Desirability, तो डिजायरेबिलिटी इज लाइक जैसे कि गेमिफिकेशन कर दिया हमने ऐप का, लाइक रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं, तो यूजर के माइंड में एक वो आएगा, एडिक्शन टाइप हो जाएगा, कि ही हैज टू यूज द ऐप रेगुलरली। लाइक आजकल तुम देखोगे किसी भी टास्क ऐप को ले लो, या फिर कुछ भी, लाइक स्टेप टू गो एक नया ऐप रिलीज हुआ है शायद, तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं just to make the user regular to the app, that comes under desirability। तुम ऐप ऐप को मतलब यूजर को कितना रेगुलरली करा सकते हो यूज, that comes under desirability।
इंस्टा वेब और ऐप में जो मेजर डिफरेंस है दैट इज नॉट इन द यूआई एलिमेंट्स, वो उसकी फंक्शनिंग में डिफरेंस है कि वेब में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, मतलब ऐप में ऐसी बहुत सारी चीजें जो वेब में नहीं है। एंड इंस्टा का वेब इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज, पर्सनली आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू यूज। तो दैट इज नॉट ब्रांड कनेक्शन। ब्रांड कनेक्शन तब खराब होता जब वो कलर स्कीम चेंज कर देते, या जो फॉन्ट है वो सब चेंज कर देते, या जो यूआई एलिमेंट्स है वो चेंज कर देते। जो उन्होंने चेंज किया दैट इज द डिफरेंस इन फंक्शनिंग, एक तरीके से जो तुम कह सकते हो। तो दैट डज नॉट अफेक्ट द ब्रांड कनेक्शन। आयुष, कंटिन्यू करें आगे आई गेस। हम्म, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये बाद में पूछ लेना, अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, हाँ, मतलब और काफी लेट इतना हो जाएगा फिर। ऐसा नहीं है कि ये तुमको समझ नहीं इम्पोर्टेंट भी आया नहीं है तो ज्यादा। बहुत फर्क पड़ेगा। आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट बस इफ यू डोंट बेसिकली अंडरस्टैंड इट। यूजेबिलिटी और यूटिलिटी में फर्क पता होना चाहिए। मेजर मतलब यही पार्ट है, बाकी तो चल जाता है। इसके बाद है लॉज ऑफ यूएक्स। तो लॉज ऑफ यूएक्स क्या है कि एक बुक है, उसमें जनरली लाइक साइकोलॉजी की स्टडी करके कुछ लॉज बना रखे हैं, जिससे मतलब यूजर के एक्सपीरियंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट एक मतलब एक दो मैं बता देता हूँ, उसके बाद तुम उसको देख ही सकते हो, लिंक शेयर कर दूंगा। तो लाइक देयर इज अ जेकब्स लॉ। तो वो क्या स्टेट करता है कि जो हमारे यूजर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी साइट्स पे सर्फ करके आ रहा है, लाइक वो हमारी साइट से ज्यादा दूसरी साइट्स पे सर्फ कर रहा है। तो उसे मतलब ऑब्वियस ही बात है कि लगेगा कि जैसे कि प्रोफाइल सेक्शन तुम देख रहे हो कि अपना प्रोफाइल वाला बटन जनरली साइट्स पे टॉप राइट में रहेगा, और कार्ट वाला ऑप्शन भी लग ऑलमोस्ट टॉप राइट में ही रहता है हर साइट में। तो दैट इज जेकब्स लॉ कि तुम मल्टीपल साइट्स पर जा रहे हो, तो पोजीशनिंग और कुछ चीज़ें लाइक आइकन्स में, जैसे कार्ट का आइकन एक फिक्स रहता है, तुम्हें पता है कि ये कार्ट जैसा दिखता है, ये हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर आइकन ही यूज करते हैं। तो दैट इज जेकब्स लॉ। इसके बाद है लॉ, हिक्स लॉ, दैट स्टेट्स लाइक यूजर्स रिस्पॉन्स। लाइक तुमने देखा होगा कि लैंडिंग पेजेस पे जो मतलब मॉडर्न डिजाइन बन रहा है, उस पे हम मैक्सिमम टू बटन्स रखते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो दैट इज हिक्स लॉ कि यूजर का जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट डिक्रीजेस, दैट इंक्रीज, जो रिस्पॉन्स रहेगा मतलब यूजर का रिस्पॉन्स करने का रेट, दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ज़्यादा ऑप्शंस दे दोगे तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा एंड ही माइट नॉट रिस्पॉन्ड टू द साइट, ही मे लीव द साइट। दैट इज हिक्स लॉ। बाकी लॉज भी हैं, मतलब पढ़ लेना, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। इसके बाद एम ऑफ गुड यूएक्स, ये तो कल की क्लास मतलब लास्ट क्लास में भी रिपीट करा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेजरली हमारा काम यह है कि यूजर को जितना जल्दी हम करवा सकें कुछ रिस्पॉन्ड, लाइक डोंट मेक द यूजर थिंक, लाइक क्या बोलेंगे इसे, डोंट मेक द मतलब यूजर बेसिकली थिंक। यूजर शुड नॉट हैव टू स्ट्रगल विद कि मैं हाँ, अपना जो भी मेरे को रिस्पॉन्स अगर। टाइम कम होना चाहिए यूजर का, लाइक ही शुड गेट इंस्टेंट रिस्पॉन्स। लाइक जैसे स्विच देखा, मतलब लास्ट क्लास में ही बताया था, उसे पता चल जाता है कि कौन से स्टेट में ऑन है कि ऑफ है, और उसे पता है एक्शन कौन सा करना है, अगर ऑन है तो ऑफ करेगा, ऑफ है तो ऑन करेगा। तो दैट इज यूएक्स पार्ट। हाँ, उसको ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है। इसके बाद एग्जांपल लाइक यूएक्स के, बैड यूएक्स के एग्जांपल्स देख सकते हैं। व्हाट्सएप में ये वाला फीचर काफी मतलब खराब लगता है, सभी को लगता होगा खराब, कि यू डिलीटेड दिस मैसेज। इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा ना, कि सामने वाले को ना पता चल रहा है कि उसने डिलीट क्यों करा मैसेज, मतलब क्या मैसेज था, तो एक क्यूरियोसिटी या तो जनरेट कर रहा है वो सामने वाले यूजर। इसका यूजर पे मतलब तुमने कुछ गलती से भेज दिया, लेकिन फिर उसके बाद ये मैसेज दिख रहा है सामने वाले को, तो इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो दैट इज अ बैड यूएक्स। और एक ये मतलब ये तो अभी रिसेंट का एग्जांपल है, लाइक हु बर्थ सर्टिफिकेट जिसका बनाना है और उसमें ऑप्शन ही आ रहा है माई सेल्फ, तो इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो दैट इज बैड यूएक्स। एंड एप्पल में एक प्रॉब्लम है, लाइक दिस इज
यहाँ पे बटन की क्लैरिफिकेशन नहीं है, लाइक वो सेटिंग्स पे जा रहा है डन, मतलब कुछ प्रॉब्लम है बटन्स में, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूआई एंड यूएक्स। तो श्रेया तो कवर करिए, मैं कर लूँ। कर ले। तो यूआई क्या है, जो हमें दिख रहा है दैट इज यूआई। मतलब तुम ऐप यूज कर रहे हो तो जो तुम्हें दिख रहा है सामने दैट इज यूआई। देन जो यूजर यूज कर रहा है, मतलब एक्चुअली जो यूज करने वाला है, जैसे फीचर्स पता है, जैसे मतलब रेगुलरली यूज करना है, और उसे जो फंक्शन दिख रहा है दैट इज यूएक्स। लाइक उसका एक्सपीरियंस कैसा यूज करने के बाद। हो सकता है तुम अच्छा यूआई बना दो लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो। तुम जान मतलब हो सकता है अच्छा बटन बनाने के लिए तुम आइकन्स कुछ इस टाइप से यूज कर लो जो यूजर को समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो पहले सोच रहा है कि इस आइकन का क्या मतलब है, दैट इज अ गुड यूआई बट बैड यूएक्स। और पहले भी कवर करा जैसे कि यूआई इज जस्ट अ सबसेट ऑफ यूएक्स। यूएक्स इज अ लार्ज प्रोसेस एंड यूआई इज जस्ट लाइक द लास्ट जो तुम्हें सरफेस पे दिखता है, दैट इज यूआई। इसमें यूएक्स में बता दो किसी को डाउट हो तो। यूएक्स इतना ही था, इसके बाद वर्कशॉप पे चलते हैं। एक बार समराइज कर दे क्या। इफ यूएक्स इज कॉम्प्लेक्स देन हाउ विल इट अफेक्ट नेगेटिवली टू द यूजर। तो यूएक्स अगर कॉम्प्लेक्स है तो जैसे कन्वर्जन रेट एक काफी फेमस मतलब वो है जो बिजनेसेस को मतलब इफेक्ट करता है। लाइक जैसे कि अगर तुम्हारी साइट पे 100 यूजर्स आ रहे हैं, 1000 मानो 1000 यूजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 4-5 समझ के उसको क्लिक कर रहे हैं बटन को, वही समझ पाए, तो कन्वर्जन रेट कितना रहा? 0.5। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। रादर अगर तुम एक साइट बना रहे हो जिसपे अच्छा यूआई बना रहे हो, अच्छा यूएक्स है, तुम्हें पता है कि फ्रंट पे सिर्फ ऐसा बटन दे रहे हो कि वो यूजर क्लिक करे ही, तो कन्वर्जन रेट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। मोर पीपल विल एंगेज इन द साइट, दैट इज द थिंग। यूएक्स स्कोप इज लाइक, कैसे बताएंगे यार इसे। कार्तिक एक्सप्लेन करना। स्कोप इज लाइक यूएक्स स्कोप मतलब यूजेबिलिटी की तरह। हाँ बता बता। हाँ, तो यूएक्स स्कोप इज लाइक कि जब तुम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज फैले हुए होते हैं। तो तुम उसकी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो, देन तुम अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करते हो। मान लो तुमने कोई ऐप बनाया, अब तुम्हारे दिमाग में 10 प्रॉब्लम्स थी, लेकिन तुम्हारा ऐप 10 की 10 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर सकता ना। वो या तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मैक्सिमम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का जितना स्कोप है, दैट कम्स अंडर यूएक्स स्कोप। आई होप आ गया होगा। UX is at backend, so if UI is better than user face a problem, but how? UX and UI go hand in hand. UI is basically UX is the flow. तुम लोगों ने अभी जो लास्ट टास्क किया तो तुमने उसमें पूरा ऐप का फ्लो डिजाइन किया ना, कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा. UX is the user experience and UI is the user interface. तो दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए फॉर द यूजर टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, टू नॉट फेस अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि अगर खाली यूआई अच्छा है और यूएक्स खराब है, या यूआई खराब है और यूएक्स अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दोनों केसेस में प्रॉब्लम होगी यूजर को. जो जब एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है, जब ऐप का फ्लो ही अच्छा नहीं है, तो अच्छा विजुअली अपीलिंग यूआई डिजाइन करके क्या कर लोगे तुम, जब फंक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं है ऐप की. तो UX is at the back end. It is more complex. It has more depth, but it is equally important for the user to have a good experience. जितना UI important है. हाँ, exactly. Very well put, Nitish. I hope that is clear. Sushant, do you still have a doubt? Good. So, shall we move forward? Does anybody have any more doubts? तो अभी पूछ लो. फिर we'll move on to Figma. I guess
कंटिन्यू करना चाहिए फिर। तो प्रेजेंट करता हूँ मैं। हम्म तो आज मतलब इस टाइप का स्क्रीन बनाएंगे, जनरल लाइक कोई भी ऐप है ये जिसपे हम वॉच सेल कर सकते हैं। तो आज ये इसका किट मैं लिंक सेंड करता हूँ डिस्कॉर्ड पे, वहां से डाउनलोड कर लो। फिग्मा डाउनलोड किया हुआ है तुम लोगों ने सबने, आई नहीं होप। वेब पे चल जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ वेब पे भी चल जाएगा, बट ओके हाँ ठीक है। नहीं भी किया तो नो इशूज, वेब पे चल जाएगा। हाँ राइट। एक ड्राइव का लिंक भेजा है, वहाँ पे एक फोल्डर है, वहाँ पे मतलब इसका जो किट वाली फाइल है जिसमें ये सब इमेजेस वगैरह है, ये मिल जाएगा तुम्हें। उसे डाउनलोड कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। मानव चैट में भी लिंक डाल दे। हाँ हाँ हाँ, डाल दिया। हाँ किसने पूछा है डाउट अभी वाला? प्रियदर्शनी, हाँ अभी डाउनलोड कर लो और अभी साइड बाय साइड ट्राई कर लो। लाइक सारी चीजें तो अभी साइड बाय साइड नहीं देख पाओगे, तो बाद में रिकॉर्डिंग से भी देख लेना जो जो रह जाए, लेकिन जितना हो सके एटलीस्ट साइड बाय साइड सब ट्राई कर लो। जिससे अभी डाउट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे से अभी क्लियर हो जाएंगे, एंड सबके डाउट्स एक साथ वो हो जाएंगे फिर एड्रेस। कॉमन डाउट्स होंगे तो इट विल बी इजी फॉर एवरीबॉडी। फिर जिसका कोई स्पेसिफिक डाउट हो बाद में डिस्कॉर्ड पे स्क्रीन शेयर करके सॉर्ट कर लेंगे। हम्म तो आप तो लाइक तुम वेब में खोलो ये फिग्मा का फाइल, figma.com खोलो अपने ब्राउजर में, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वो ओपन हो जाएगा। गाइस इतना कर लो सब, फिग्मा खोल के और फिर इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अपने ब्राउजर में, और फिर यहाँ इस वाली स्क्रीन तक आ जाओ। इस वाली स्क्रीन तक जो जो पहुंचता जा रहा है वो ओके लिखते जाना चैट में, या यस कुछ भी, ओके लिखते जाना ताकि है, हमको पता चल रेज योर जाए। हैंड्स रेज कर देना, इट विल बी बेटर फॉर अस टू ट्रैक। एटलीस्ट हमको पता लग जाए कि लोग पहुंच पा रहे हैं यहाँ तक। हम्म सर कौन सी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है? जो ड्राइव का लिंक दिया है उसमें एक फाइल ड्राइव है से यूआई के नाम डॉट से। फिग वाली फाइल होगी, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्या फिग नाम है। है उस फाइल का? यूआई वर्कशॉप नाम है उस फाइल का। वो डाउनलोड करके और उसको अपने उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। खोलना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं खोलना, तुम्हें फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, सब अपने आप खुल जाएगा। figma.com खोलोगे, वहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। खुल पाया है किसी का अभी तक? पहुंच पा रहे हैं ना लोग यहाँ तक? ठीक है ठीक है। लाइक यहाँ पे जब ये वाला इंटरफेस आएगा ना, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो वाली फाइल, वो खुल जाएगा। ये वाले इंटरफेस तक तो कल भी आए थे ना गाइस, मतलब पिछली वर्कशॉप में,
बस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है वाली फाइल। रैंडमली कहीं भी। ड्रॉप कहाँ करना है? ड्रॉप डार्क मोड नहीं होता करंट फिग्मा में। हम भी वेट कर रहे हैं 2-3 साल से फिग्मा में कभी डार्क मोड आ जाए। इंपोर्टिंग फेल आ रहा है। एक second। इंपोर्ट फेल आ रहा, दोबारा ट्राई करो। बाकियों का तो नहीं आ रहा। हाँ वो भी बता देंगे, सिर्फ वॉचेस दिख रही हैं, अभी वहीं तक पहुंचना है। और किसी का इंपोर्ट फेल आ रहा है तो बताओ। अगर एक ही बंदे का इशू है तो फिर बाद में सॉर्ट करते हैं। इंपोर्ट फेल 2 जनों का आ रहा है। और किसी का? ड्रॉप कहाँ करना है? रैंडमली कहीं भी उस विंडो के अंदर, फिग्मा वाली ब्राउजर में जो खुला है विंडोज के अंदर। फेल आ रहा है, 3 लोग का आ रहा है। दोबारा ट्राई करो ना, बाकी लोग का हो भी रहा है। फुल स्क्रीन शेयर कर रही ना? तो ये मैंने डाउनलोड करा और डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वो इंपोर्ट कर लेगा। ड्रैग कैसे करना है? ड्रैग तो जैसे ड्रैग करते हैं वैसे ही करना है। ड्रैग कैसे बताएं अब? धैर्य। हो गया ना, बढ़िया बढ़िया। हाँ जो स्क्रीन पे पेज दिख रहा है वहीं तक करना है। अरे पहुंच गए होंगे मैक्सिमम लोग, आगे स्टार्ट करते हैं। पहुंच गए ना, काफी लोग पहुंच गए ना। एक दो का इशू आ रहा है ना, वो तुम डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना जिसका भी रह गया, क्योंकि काफी लोगों का हो गया। ठीक है, कंटिन्यू कर लो। हाँ, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेम लेंगे। तो फ्रेम क्या है, लाइक इलस्ट्रेटर या किसी ने कोई ऐप यूज़ करा हो डिजाइनिंग का, एक आर्टबोर्ड टाइप है, जिसमें मतलब फिक्स्ड लेंथ एंड विड्थ के लिए तुम डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फ्रेम वाला ऑप्शन आएगा, उसमें सेलेक्ट करना है तुम्हें एंड्रॉयड लार्ज। तो उसके बाद ये वाला स्क्रीन पे आ जाएगा फ्रेम। तो इसको चाहे रीनेम कर लो, मतलब ऐसा भी छोड़ सकते हो। तो ऐसा कर दो, स्टार्ट कर। अब जैसे हमको फॉर दिस, इस वाले केस में हमको एक ऐप बनाना है दैट इज सेलिंग वॉचेस। तो उसके लिए हमको ये एलिमेंट्स दिया हुआ है, यूआई किट दी हुई है पूरी, जिसमें हमारा के फॉन्ट है, वॉचेस के फोटोग्राफ्स हैं, के सेक्शन के जितने भी यूआई एलिमेंट्स हमको इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है, सब गिवन है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को प्लेस करने के लिए मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं तो प्लेस करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप ही यूज़ होगा पूरे में, ऐसा कुछ है नहीं है। स्टेटस बार है, ये यूआई किट में दिया हुआ है। टाइटल को ऑन द टॉप ऑफ द पेज। फिग्मा काफ़ी सही है टू अलाइन थिंग्स, ये मतलब अच्छे से बता देता है उनको सेंटर एंड ऑल। मतलब मेरे को इट ज़्यादा अच्छा लगता है ये इन कंपैरिजन टू एक्सडी। मैंने दोनों यूज़ करे हुए हैं। और एक बात, मतलब जब तुम ड्रैग कर रहे हो ना, ऑल्ट प्रेस कर लेना, उससे डिप्लोकेट होगा, मतलब तुम्हारा जो ओरिजिनल वाला है वो हटेगा नहीं, तो एक कॉपी बन जाएगा उसका। हाँ, जैसे अगर अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम इसको आती है मैंने तो वापस नहीं डाल दिया तो अब मैंने अगर ऑल्ट प्रेस किया तो इसका एक कॉपी बन गया, एंड अब मैं इस कॉपी को मैक में इस कमांड। जगह प्लेस कर दूँ। फिर इसके बाद द मेन थिंग यू हैव टू डू इज showcase the watch, क्योंकि that is our primary
product that we are selling. तो जैसे सपोज मैं तुमको एक एग्जांपल दे ही देती हूँ, एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ जिसको कॉपी कर रहे हैं या जैसा बनाना है एक तरीके से। जैसे सपोज ये स्क्रीन है और हमको सिमिलर डिजाइन करना है, तो व्हाट विल बिगिन विद इज एलिमेंट्स तो हमारे पास सारे हैं ही। जैसे इसका बेसिस ये कलर का, तो अगर तुमको ये कलर चाहिए तो इस फ्रेम को सिलेक्ट करो, इसका कलर चेंज करने के लिए इस फ्रेम को सिलेक्ट करो। राइट हैंड साइड में, एक सेकेंड मानो स्क्रीन तेरी प्रेजेंट हो रही है तो हाँ हाँ हाँ, तो राइट हैंड साइड में पैनल आ जाएगा। मतलब अभी तुमने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो वो जनरल बैकग्राउंड का सेटिंग बताएगा। अगर तुम इसे सेलेक्ट करोगे तो ये इसके पर्टिकुलर फ्रेम के अकॉर्डिंग सेटिंग्स बताएगा। तो वहाँ पे जाके फिल सेलेक्ट करना और और इस अगर कलर तुमको नीचे से कोई कलर सेलेक्ट करना है या खुद ही कोई कस्टम कलर करना है तो तुम इस पूरे चार्ट में लाइक से कर तुम सकते हो। स्लाइडर मूव करके चेंज कर सकते हो। नहीं तो जैसे कि अगर इसका कलर कोड बता देते हैं, तो इसका कलर कोड है क्या रिपीट करना है? कोई एक अनम्यूट करके बता दो, अंशुल, अमित, शिवम, कोई भी। ये राइट वाला कैसे आया? जो एंड्रॉयड लार्ज 1 लिखा है इस पे क्लिक करो, जस्ट क्लिक ऑन द नेम या क्लिक ऑन द फ्रेम जो भी तुमने बनाया था, तो ये राइट वाला पैनल आ जाएगा। जो फ्रेम के ऊपर नाम लिखा हुआ है ना उसका, ये जो अभी ब्लू में लाइक हाईलाइटेड हो रहा अभी है अगर सर तुम की कुछ स्क्रीन। सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो सिंपल दिखेगा। जैसे तुम फ्रेम सेलेक्ट कर लोगे ना, तो हाँ, तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सर का कर्सर कहाँ जा रहा है वो देख लो एक बार, मानो एक बार सिलेक्ट करके बता देना फिर से। हम्म। अभी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा है। अब तुम फ्रेम सेलेक्ट कर लो। वो उसके बाद वो साइड तुम लोग, वो मैंने डाला है फॉर रेफरेंस कि हमको कैसे बनाना है आयुष। मैंने अपनी, मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैंने उधर से कॉपी किया है, वो तुम लोगों को कॉपी नहीं करना। एंड्रॉयड लार्ज में जो काम हो रहा है तुम लोग उस पर ध्यान दो, वो मैंने तुम लोगों की रेफरेंस के लिए बताया है कि हम ऐसा कुछ डिजाइन करने वाले हैं। हाउ टू कॉपी एनी ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करके कंट्रोल कंट्रोल से सी, कंट्रोल भी कर दो, और मैक में हो तो कमांड सी वही। कमांड से कमांड भी, हाँ, कॉपी के लिए। और जो जैसे वो फ्रेम बनाने के लिए देविका ऊपर जो बटन है, देखो ये ये सिलेक्ट चेक जो बॉक्स टाइप, कर्सर वाला है ना, उसके जस्ट उसके राइट में जस्ट बगल फ्रेम वाला, का। या नहीं तो इफ फिर क्लिक शॉर्टकट करोगे, यूज कर लो, कंट्रोल एफ। सिर्फ एफ हाँ, सिर्फ F। अच्छा सिर्फ एफ, ओके। मैंने जनरली करते और कोई क्या पूछ रहा था? अगर क्या कहते हैं अंशुल, वो ऑल्टरनेट वाला पूछ रहे हो कि किसी एलिमेंट का जो मैं अरेंज कर रही थी, तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके ऑल्ट की प्रेस करो इफ यू आर इन विंडोज, फिर उसको मूव करके प्लेस कर दो। जब तुम ऑल्ट प्रेस करोगे ऐसे डबल कर्सर आ जाएगा, और जब तुम उसको ड्रैग करोगे ना तो अपने आप कॉपी बन जाएगी उसी की। तो ओरिजिनल तो सेम रहेगा, एक कॉपी तुम्हारे पास आ जाएगी जिससे ओरिजिनल वाला इफेक्ट नहीं होगा। लाइक फोटोशॉप अगर तुमने सीखा होगा स्टार्टिंग में, तो ऐसा ही करते हैं ना, एक लेयर बना लेते हैं एक्स्ट्रा, जस्ट इन केस उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एक बैकअप लेयर बना के रखते हैं। उसी के लिए डुप्लीकेट एक हम बना ले रहे हैं उसका, जिससे अगर बाद में से डिलीट करना पड़े तो ओरिजिनल वाला डिलीट ना हो। एंड्रॉइड एंड्रॉयड लार्ज 1 फ्रेम में से आएगा जब नीतीश। क्लिक करोगे ना तो राइट वाले पैनल में काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे तुम्हें। तो सबसे ऊपर होगा फोन वाला। फोन। फोन में सबसे नीचे है एंड्रॉयड लार्ज। तो इसका मतलब स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। जनरली मतलब ऐप डिजाइन के लिए हम एंड्रॉयड लार्ज, मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए डिजाइन करते हैं। इतना हो गया तो बताओ आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। हम्म
इसके बाद क्या करना था, फ्रेम में ये कलर डाल दो, या फिर जो भी तुम्हें सही लगे, हो सकता है कि तुमको अच्छा और अच्छा लगे तो तुम स्लाइडर हाँ, से ऐसे मूव करके तुम सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो ये वाला कलर अगर रखना है तो इसका हेक्स कोड दे देता हूँ, वो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देना। you can make your device adjustable for all the listed devices. मतलब responsive करने का पूछ रहे थे राइट, सेपरेटली डिजाइन करना पड़ता है उसके लिए। अ, हम्म, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है अभी, मतलब ये बेसिक सीख लो, अभी एडवांस में मतलब बाद में जाते हैं। हाँ ऐसा तो उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो तुम्हें कोड ही करना है। अगर ऐप को अगर रियल लाइफ के लिए बनाना है तो कोड ही करना पड़ेगा। दिस इज डिजाइनिंग इज जस्ट फॉर रेफरेंस, तुम्हारा डेवलपर कैसे उसको कोड करे। हाँ, कलर ऐड करने के लिए फ्रेम को सेलेक्ट करो, राइट हैंड साइड पे पैनल आएगा और इसमें मानो सेलेक्ट कर एंड्रॉइड लार्ज को, इसमें जो फिल का ऑप्शन है इस पे जस्ट क्लिक ऑन दिस स्क्वायर जिस पे कलर बना हुआ है, तो ये पूरा ये खुल जाएगा अगर तुमको इसमें से सिलेक्ट करना है। और डायरेक्टली हेक्स कोड पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे नीचे, और हेक्स कोड मानव ने डाल दिया चैट बॉक्स में, या फिर अपने मन का कोई कलर करना है तो वो भी कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस। लाइक वाइट होगा तो हो सकता है तुम्हें कुछ और इस टाइप का दिखेगा वहाँ पे, तुम हाँ, स्लाइडर को शिफ्ट करके इस टाइप से मतलब कलर सेलेक्ट कर सकते हो। वरना कोई पर्टिकुलर हेक्स कोड है दिमाग में तो डायरेक्टली हेक्स कोड भी टाइप कर सकते हो। जो ये ऊपर चैट में लिखा है D7DE4, ये इस ब्लू ग्रे शेड का हेक्स कोड है। जस्ट लेट अस नो जब इतना तक हो जाए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, वी वेटिंग फॉर यू गाइस। वॉच का फ्रेम, वो फ्रेम मैंने एक पीएनजी पेस्ट करी है इस फाइल में, मैंने एक इमेज पेस्ट करी है सुशांत, फॉर रेफरेंस कि हम कैसा बना रहे हैं, जिससे तुम लोगों को पता चले कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ऐसा ये नहीं लगे कि समझ नहीं आ रहा कि व्हाट आर वी मूविंग फॉरवर्ड विद। दैट इज बेसिकली रेफरेंस वाली फोटो। You don't have to import that or get that in your file. वो बस तुम लोग के देखने के ये लिए है। जस्ट लाइक हम ऐसे ही किसी को बना हो गया हो लेंगे। तो किसी को आगे फॉरवर्ड मूव करना हो तो जस्ट रेफरेंस के लिए एक लगा दिया है, कोई हाँ, आगे कंटिन्यू करना चाहे तो। बाकी हम कवर तो कर ही देंगे। हो गया है मानव, काफी लोगों का आगे कर। ठीक है, तो इसके बाद जैसे अभी ग्रिड सिखाया था श्रेया ने, तो यहाँ पे एक लेआउट ग्रिड का ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास। तो फ्रेम को उसको जब सिलेक्ट तुम कर लोगे तब हम्म, लेआउट ग्रिड के ऑप्शन के लिए भी फ्रेम सिलेक्टेड होना चाहिए। और वहाँ पे सबसे राइट में एक प्लस वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक ग्रिड टाइप बन जाएगा तुम्हारे स्क्रीन फ्रेम में। तो जनरली हम ऐप्स वगैरह के लिए या फिर कोई भी स्क्रीन के लिए 8 पॉइंट ग्रिड यूज़ करते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट 10 रहेगा, तुम उसको डिक्रीज करके 8 कर देना। और अगर कॉलम और उसका भी ऑप्शन होता है, अगर तुमको कॉलम में ज्यादा सही रहता है तो तुम कॉलम का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो ग्रिड के सेटिंग्स में। लाइक जब तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कॉलम वाला ऑप्शन आ जाएगा ड्रॉप डाउन में। अब इसके अकॉर्डिंग लाइक मार्जिन, अगर तुम्हें 24 पिक्सल का मार्जिन रखना है। जस्ट और सेकंड अंकित, हम ये कॉलम वाला बता के रिपीट कर रहे हैं फिर से। तो ये ग्रिड कैसे जस्ट बनाना है पूरा 24 वो रिपीट करना है ना? यस या नो लिख दो चैट बॉक्स में, हाँ ठीक है। तो मैंने हाइड करके एक बार पूरा स्टार्टिंग से बता दो ग्रिड का कैसे करना देखो, जब तुम फिर। अभी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा है, अभी जब तुम फ्रेम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो इसमें डिटेल्स के बाद एक कॉलम सेक्शन आएगा, उसका हेडिंग रहेगा लेआउट ग्रिड। तो उसमें सबसे राइट में ऑप्शन है प्लस का, जब उस पर क्लिक करोगे तो एक ग्रिड बन जाएगा तुम्हारे पास। अब उसके तुम्हें सेटिंग्स चेंज करके अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट 10 पिक्सल का ग्रिड बनता है। तो चेंज करने के लिए तुम ग्रिड यूज करोगे, तो इस पे जब क्लिक करोगे ऐसे जो ग्रिड वाला आइकन है,
तो ऐसा एक ड्रॉप डाउन या फिर टूल किट बॉक्स खुल जाएगा। फिर इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है, या तो तुम कॉलम्स में बना सकते हो ग्रिड, या फिर रोज में बना सकते हो ग्रिड, या फिर डिफॉल्ट जो ऐसे चेक बॉक्स में बना सकते हो ग्रिड। तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉलम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, और जैसा बताया था अभी 8 पॉइंट जनरली यूज़ करते हैं हम एप्स या फिर वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो हर चीज़ जनरली इन द मल्टीपल ऑफ 8 रखते हैं। जैसे काउंट अगर हमें 4 कॉलम ग्रिड बनानी है, इसका मार्जिन हमें 16 चाहिए, और हर कॉलम के बीच में जो गैप है वो 16 चाहिए या फिर 8 चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट होके ग्रिड बन जाएगी तुम्हारी। हाउ टू चेंज कॉलम आई कांट फाइंड। जब तुम कैसे इसको ऐड करता हूँ, नया जब बनाओगे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये आइकन आएगा ग्रिड वाला फर्स्ट लाइन में। 8 या 8 का कोई भी मल्टीपल इज आइडियल, बाकी मर्जी है। जनरली 8 या 8 के मल्टीपल्स यूज करते हैं। तो ड्रॉप डाउन तुम्हें मतलब जब ये आइकन क्लिक करोगे तो जहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दो तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा तुम्हारे पास, वहां से कॉलम सेलेक्ट कर लो। Just let us know when you've reached up till this point. आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। नीचे वाला इमेज प्लेस करते हैं, नीचे वाला सेक्शन बता रहा है हाँ, ऐसे। तो यहाँ पे कई सारी इमेजेस हैं, कोई से भी ले लो, या फिर इसके लिए बना लो या इसके लिए बना लो। हम इसके लिए बनाते हैं जैसे, तो इसको वही सेम ऑल्ट दबा के ड्रैग करोगे तो कॉपी बन जाएगा। और जब फ्रेम के ऊपर जब अपना कर्सर लेके आओगे तो फ्रेम के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको फ्रेम के अकॉर्डिंग प्लेस कर दो कि कितने साइज का रखना है वो सब। हाँ, देख लो। और इसको स्केल कर सकते हैं, जैसे अभी सिंपल इमेज सेलेक्टेड है, अब मैं शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और अकॉर्डिंगली इसका जब बाउंड्री पे जाऊंगा तो मेरे पास डबल एरो आ जाएगा। तो इसको ड्रैग करके मैं साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर शिफ्ट को प्रेस नहीं करोगे तो इसके रेशियो चेंज हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शन चेंज हो रेजोल्यूशन, जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ का, विड्थ एंड हाइट का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करके वो करना। अदरवाइज यहाँ पे एक ये वाला वो भी है बटन, या फिर यहाँ विड्थ पे और हाइट स्केल के सेलेक्ट कर बगल में। सकते हो। उससे अगर करोगे उसके एरो यूज करके तो अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगा। हाँ, अबाउट शिफ्ट ऑल्ट दबा के ड्रैग नहीं हो रहा। उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करे रहो एंड देन ड्रैग इट टू योर स्क्रीन। हुआ नीतीश? ओके। हाँ, शिफ्ट, हाँ, एज कार्तिक सर सेड, अगर शिफ्ट को प्रेस करके नहीं करोगे स्केल इमेज को साइज बड़ा छोटा अगर कर रहे हो और शिफ्ट प्रेस नहीं किया है तो लेंथ और ब्रेथ का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, जैसे कि तो अगर मैं डिस्टॉर्ट हो बिना जाएगी शिफ्ट के इमेज। करता हूँ हाँ, और इसको चेंज कर देता हूँ, अब मैं इसका अगर बिना शिफ्ट दबाए करूँगा तो ऐसे ये कंप्रेस इसका डिस्टॉर्ट हो मतलब जाएगी। रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगा। Ruined the frame proportion of the image or the Android large one? तो उसको सेलेक्ट करो, या तो नया फ्रेम बना लो या फिर कंट्रोल जेड जेड कर दो, अंडू कर दो यार, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा।
या फिर हम डायमेंशंस बता देते हैं, उस डायमेंशन पे सेट कर लेना, सेलेक्ट करके रीसाइज कर देना। ठीक है, कुछ 5-6 लोगों का और हो जाए तो वील मूव फॉरवर्ड। बता दो स्टेटस बार कैसे आएगा। स्टेटस बार तुमको यूआई किट में प्रोवाइड किया हुआ है आर्यन, ये है स्टेटस बार। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑन योर स्क्रीन। चलो वील मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो अब हो सकता है कि किसी ने इसको राइट से कुछ ज़्यादा स्पेसिंग दे दी और लेफ्ट से कम स्पेसिंग दी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर लाइन कर लेके यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। तो अगर हम ये वाला क्लिक करेंगे, सेकेंड वाला, तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ये उसके सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग मतलब जैसा कि आइकन से भी देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट द इमेज विल अलाइन टू द फ्रेम। तो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं जो है हमारा बैक बटन। इसको डायरेक्टली कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे और पेन को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी, तो ये हमारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और इसको शिफ्ट कर देंगे टॉप लेफ्ट में। अब इस केस ओके, में हाँ, जैसे अभी सर बटन्स अरेंज कर रहे हैं तो ग्रिड से हमको पता चल रहा है ना हाउ मच स्पेस डू वी हैव टू लीव ऑन ईदर साइड, और कैसे पोजीशन करना है। दैट इज वेयर ग्रिड्स कम इन यूज, पोजीशनिंग और अरेंजमेंट के लिए। बेसिकली ऐसा कनेक्ट द डॉट्स खेलते हो ना, तो यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। कनेक्ट द डॉट्स इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, बट गाइड की तरह एक्ट करता है बेसिकली कि किस कितना स्पेस देना है और किन लाइंस के अंदर अंदर रहना है तुमको। जो बटन ऐड किया, जो अभी स्क्रीन में बटन ऐड किया था बैक बटन, एंड वो तो शेयर बटन, यूआई का दीज आर पार्ट है जस्ट ना। आइकन्स लाइक डेवलपर को क्या क्या ऐड करना है स्क्रीन पे। हाँ, वो तुमको बताया है उसने कि उसका ऐसा कुछ, ये शेयर का बटन है आई गेस, है ना। हाँ हाँ, शेयर का बटन है वो। बैक बटन का साइज कैसे इंक्रीज करूँ, उस बटन को सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ, स्केल कर लो, या फिर बटन को सेलेक्ट करके राइट हैंड साइड में जो पैनल आ रहा है इसमें W इज फॉर विड्थ, H इज फॉर हाइट, तो वहां से भी चेंज कर सकते हो। Repeat the alignment part, please. Alignment about the grids, or what are you talking about, Anshul? How to resize the back button? Nitya, select that button. उसके बाद जैसे वॉच को रिसाइज किया था ना, वॉच की इमेज को, या तो वैसे रिसाइज कर लो, या फिर सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड पे जो पैनल आ रहा है ना, वहां पे W जो लिखा हुआ है उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो चीज है दैट इज फॉर द विड्थ, एंड H की कॉरिस्पॉन्डिंग जो नंबर है दैट इज फॉर द हाइट। वहां से भी कर सकती हो। एंड इसके बगल में जो ये बटन है जहाँ पे सर का कर्सर था अभी, दैट इज टू, मतलब कि प्रोपोर्शंस वो ना हो चेंज व्हाइल यू आर चेंजिंग द विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे, फिर अगर विड्थ को चेंज करोगी तो उतनी ही रेशो से हाइट भी बढ़ेगी। वो बटन इस काम आता है। बैक बटन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, पूरे स्टेटस बार सेलेक्ट हो। ग्रुप टैग है मानव ये सब। नहीं नहीं नहीं, अलग है। हाँ, अगर तो नहीं हो रहा बट ये अलग है, स्टेटस बार अलग है, बैक बटन अलग है और इमेज अलग है। ओके,
अच्छा, मानव वो सेंटर अलाइन करने वाला फिर से बता दे इन लोगों को। हाँ हाँ, जैसे कि तुमने इसको डिलीट करता हूँ। तुम जैसे कि इमेज लेके आए यहाँ पे, तुम्हारे पास इमेज है, तुमने इसके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हो सकता है कि तुमने इसको सेंटर लाइन ना कराओ जब ड्रैग कराओ, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेम अगर तुम्हें इसे सेंटर लाइन करना है तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें जो सेकंड वाला है, जिसमें मतलब ऐसा बीच में लाइन है, वर्टिकल वर्टिकल लाइन, उसको जब क्लिक करोगे तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेम वो बीच में आ जाएगा। तुम्हें मतलब बीच में बार बार मतलब ऐसा देखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा इधर हो गया थोड़ा इधर हो गया। अगर वैसे तो यहाँ पे जैसे जब मैं इसको मूव करता हूँ ऐसे लाइंस आ जाती हैं गाइड के लिए, लेकिन अगर इतनी नहीं करनी है मेहनत तो डायरेक्टली ये वाला बटन प्रेस कर दोगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा। हाँ, प्लीज लेट अस नो यहाँ तक हो जाए तो। वी वेटिंग फॉर यू गाइस टू मूव फॉरवर्ड। कूल, मैंने आगे का बता। हाँ, तो इसके बाद हमें ये चीज़ बनानी है जहाँ पे हम डिटेल शो करेंगे इसके लिए। तो डिटेल शो करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका बैकग्राउंड वाइट कर देंगे। तो रेक्टेंगल के लिए जो फ्रेम वाला बटन था, उसके जस्ट बगल वाला बटन है शेप टूल्स जिसको कहते हैं, वो रेक्टेंगल है। इसमें ड्रॉप डाउन में देखोगे तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। रेक्टेंगल है, लाइन है, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, यू कैन इवन प्लेस एन इमेज। तो ये सारे ऑप्शंस है। अभी के लिए वी हैव टू यूज अ रेक्टेंगल, ये टू जहाँ पे डिटेल्स इसकी प्लेस होंगी। तो हमने रेक्टेंगल चूज किया। इसका शॉर्टकट भी है, आर है इसका शॉर्टकट इफ यू वांट टू प्लेस अ डायरेक्टली रेक्टेंगल। आर क्लिक करोगे तो वो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, और जब फ्रेम के ऊपर आके इसको ड्रैग करोगे तो फ्रेम के अंदर ही तुम्हारा रेक्टेंगल बना देगा, और फ्रेम के बाहर करोगे तो फ्रेम के बाहर रेक्टेंगल बनाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो तुम स्टार्ट कर रहे हो फ्रेम के एकदम एज से स्टार्ट करो, जिससे वो फ्रेम के अंदर ही रहेगा तुम्हारा रेक्टेंगल। फिर उसके बाद मतलब बाय डिफॉल्ट ये कलर आ जाएगा, इसको चेंज करके हमें वाइट करना है। तो वाइट का हेक्स कोड रहता है एफ 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 एफ, मतलब 6 वैल्यू को एफ कर देंगे तो वाइट हो जाएगा। अब इतना करो, फिर उसका चेंज करने का बताते हैं थोड़ा। जैसे राइट में राउंडेड कॉर्नर्स हैं तो वो कैसे होंगे वो बताएंगे। फिर रेक्टेंगल प्लेस करके उसका कलर वाइट कर दो। फिर से फिर से प्लेस करना बताएं। अच्छा, तो मैंने हाइड करके पूरा ही बता था। हाँ, तो मैं आर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे जो टूल है वो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने एकदम फ्रेम के एज पे जाऊँगा और वहां से इसे ड्रैग करना स्टार्ट कर दूंगा रेक्टेंगल को। तो उससे मेरे फ्रेम के अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, और जब तक मैं उसको क्लिक करके ड्रैग करता रहूंगा वो उसी साइज में बड़ा होता रहेगा। और जैसे ही मैं रिलीज करूंगा बटन, द रेक्टेंगल विल फॉर्म। अब इसको तुम वापस चेंज कर लेना टूल टू मूव टूल, या फिर वी क्लिक कर लेना, वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर साइज का कुछ प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्टली यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद राइट हैंड साइड वाले कॉलम में फिल पे जाके इसका कलर वाइट कर देना। वाइट का हेक्स कोड इज ट्रिपल एफ ट्रिपल एफ। ओके, तो अब राउंडेड कॉर्नर्स का बता देते हैं। जब ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करे रहोगे तो ये जो राइट हैंड साइड में जो पैनल आ रहा है, इसमें जो ब्रैकेट एज के नीचे जो ब्रैकेट जैसा है, ब्रैकेट भी नहीं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर फ्रेम जैसा वो जैसा बना हुआ है। कुछ, हाँ, इस पे क्लिक करोगे तो इस टैग का एक एक्स्ट्रा मेन्यू खुल जाएगा। उसमें तुम्हारा बॉर्डर जो रेडियस, लाइक
जो चारों कॉर्नर्स हैं उनका रेडियस है ये, कि वो कितना ज़्यादा कर्व्ड है। तो अभी तो सारे पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं, देयर आर नो राउंड कॉर्नर्स, तो सब कुछ 0 है। अब हमको राउंड करना है, तो जैसे इधर इसने 23 किया या 24 किया, तो वो जो लेफ्ट हैंड का टॉप कॉर्नर है वो कर्व हो गया विद द रेडियस ऑफ 24। तो ऐसे सिमिलरली तुमको टॉप के लेफ्ट और राइट दोनों 2 कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो इसके ऊपर हावर करोगे तो पता चल जाएगा ये कौन सा वाला कॉर्नर है। जैसे इसमें लिखा आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर रेडियस एंड टॉप राइट कॉर्नर रेडियस, तो यू नॉट हैव टू स्ट्रगल कि तुम डाल डाल के चेक करो, हावर करके देख लेना। आई होप एवरीबडी वॉज एबल टू सी कि हमने कहाँ से किया ये। अगर नहीं तो एक बार बता दो, विल रिपीट इट। ओके, 5-6 लोग और कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे का बता मैंने। हम्म, तो अब तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे हल्का सा शैडो है, मतलब जब देखोगे तो हल्का सा शैडो दे रखा है, जिससे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं इसके बैकग्राउंड और इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाहर की तरफ हमारी रेज्ड है स्क्रीन वो, आ रखा है। तो जो उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इफेक्ट्स वाला सेक्शन रहेगा, उसमें प्लस वाला बटन दबाओगे तो एक ड्रॉप शैडो का कॉलम खुलेगा। तो ड्रॉप शैडो में जब तुम इफेक्ट सेटिंग्स पे जाओगे, कॉर्नर रिपीट कर, ठीक, तो कॉर्नर का क्या करना है, कॉर्नर वाले रिपीट करना है मानव। नीतीश इज हाँ, सेइंग कॉर्नर राउंड। जब तुम रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे अपना, तो ऐसा राइट पैनल में ये वाला बटन सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉर्नर देख लेना, या फिर फ्रेम जैसा आइकन है इसका, उस पर क्लिक करोगे तो एक एक्स्ट्रा मेन्यू टाइप खुल जाएगा नीचे। और वहाँ पे मतलब हर कॉर्नर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दे रखी है। अभी जैसे मेरे चारों कॉर्नर्स जो है वो अनराउंडेड है, एकदम पॉइंटेड है, तो सबका 0 रेडियस है। अब मेरे को जैसे टॉप में लेफ्ट वाले का चेंज करना है, तो वो फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, डायरेक्टली उसके ऊपर हवर करोगे तो वैल्यू पता चल जाएगा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग। और मतलब इसकी वैल्यू चेंज कर दो, इसको जैसे मेरे को 24 रखना है, तो इसको 0 से 24 तक ले जाओ, या फिर डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। समझ में आया? आगे बढ़े क्या? तो ड्रॉप शैडो पे थे, तो ड्रॉप शैडो तुमने यहाँ पे क्लिक करो सेक्शन पे, तो एक ड्रॉप शैडो का सेटिंग खुलेगा। जैसे ऊपर से लिखा था ग्रिड्स के लिए, उसी टाइप से यहाँ पे एक सन टाइप का आइकन है, तो उसको जब क्लिक करोगे तो उसकी सेटिंग्स आ जाएगी तुम्हारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग, लाइक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू दे रखी है कि वो राइट लेफ्ट में कितना शिफ्टेड है। जैसे अगर एक्स को बढ़ाओगे तो वो राइट शिफ्ट हो जाएगी शैडो, और एक्स को अगर नेगेटिव डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। और सिमिलरली अगर वाई को नेगेटिव की तरफ लेके जाओगे तो वो ऊपर शिफ्ट होगी, और वाई को अगर पॉजिटिव की तरफ लेके आओगे तो वो नीचे शिफ्ट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो चेंजेस, चेंज वैल्यूज। डायरेक्टली यही कॉपी कर दो, या फिर तुम इसके साथ प्ले अराउंड भी कर सकते हो अगर मन करे। जैसा तुमको अपनी मर्जी से करना है तो अपनी मर्जी से कर दो, वरना द वैल्यूज आर x is 0, y is -2, कलर इज ब्लैक और 8% है वो ओपेसिटी। x का बताना दोबारा सर। x इज बेसिकली मतलब कि शैडो कितना लेफ्ट में है या कितना राइट में है। अगर x इसको नेगेटिव मतलब मैं रहेगा, एक और रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। हाँ, तो समझ लो मेरे पास ये दो रेक्टेंगल है, पीछे वाला सिर्फ कॉन्ट्रास्ट के लिए लगाया है अभी।
अब मैं इसका अगर शेडो डालूं, तो अगर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग है, अगर y में वैल्यू है, तो तुम देख सकते हो शेडो सिर्फ नीचे आ रही है, क्योंकि y0 एंड x0 एंड y की कुछ वैल्यू है। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाके इसकी x की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो राइट शिफ्ट हो रही है, और अगर डिक्रीज कर रहा हूँ तो लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। सिमिलरली अगर y की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ तो ऊपर शिफ्ट होगी, और इंक्रीज करूंगा तो नीचे शिफ्ट होगी। ठीक है, शैडोज का ट्राई कर लो, डाउट्स हैं तो पूछ लो अभी, एंड लेट अस नो इफ इट्स डन। कार्तिक, वो मानव आगे कर। तो इसके बाद हमें ये इसका टेक्स्ट हमें लिखना है। तो उसके लिए हम या तो डायरेक्टली टी प्रेस करोगे तो तुम्हारा कर्सर चेंज होके प्लस वाला आइकन बन जाएगा, और उससे तुम एक टेक्स्ट फील्ड बॉक्स बना सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग लाइक तुम्हें लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट चाहिए, सेंटर अलाइन टेक्स्ट चाहिए, राइट अलाइन टेक्स्ट चाहिए, वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और ये वर्टिकल अलाइन के लिए है। और ये हमारा सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए। लाइक यहाँ पे हमने यूज़ करा है ये वाला फॉन्ट, प्ले फेयर डिस्प्ले। अगर अवेलेबल है तो कर सकते हो, नहीं तो जो फाइल थी तुम्हारी ड्राइव वाली, उसमें फॉन्ट्स की एक फाइल दे रखी है, वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। नहीं तो अभी कुछ रैंडम यूज़ कर लो, बाद में चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अब हो सकता है कि तुम्हें ये टेक्स्ट थोड़ा अजीब लगे कि तुम इसकी मतलब इसकी सेटिंग्स के साथ चेंज कर सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ वैल्यू ले रखी होगी लाइन हाइट की। लाइक लाइन हाइट क्या है कि तुम्हारा इस पॉइंट से लेके जितना ये वाली लाइन है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है उस तक का डिस्टेंस, तो तुम उसको इंक्रीज करके दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो, ड्रैग करके। मानव रुक जाओ अभी थोड़ा, हाँ हाँ। इतना करो गाइस एक बार। अच्छा, टेक्स्ट रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग से, शुरू से करते हो रहा। ठीक है, तो क्या करना है कि या तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, या फिर टी क्लिक करोगे तो यही वाली सेटिंग सेलेक्ट होगी। और इसके बाद किसी एक पॉइंट पे चले जाओ फ्रेम में, और उसको ड्रैग कर दो, तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है कि यहाँ पे एक तो फॉन्ट चेंज करना है सबसे पहले। फॉन्ट या तो ये यूज़ कर लो, या फिर अभी जनरली कौन सा फॉन्ट रहता है, ये हो सकता है कि अवेलेबल ना हो तो डाउनलोड कर सकते हो। गूगल फॉन्ट्स पे अवेलेबल है, नहीं तो जो ड्राइव लिंक भेजी है उसमें भी दे रखी है फॉन्ट फाइल। वरना भी कोई भी फॉन्ट यूज कर लो, हाँ, इसको बाद में चेंज करते हैं लाइक ना। पॉपिन से यूज़ कर लेते हो, ऑलमोस्ट हर डिवाइस पे मिल ही जाता है। हाँ, पॉपिन से फॉन्ट से में से कोई भी यूज कर लो, ये ओपन साइंस कुछ भी। और तुम लोग को फॉन्ट डाउनलोड करना भी बता देंगे एक बार। फॉन्ट जब टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो मतलब फॉन्ट कौन सा कैसे सिलेक्ट किया वो दिखा दे एक बार। हाँ,
जब बॉक्स बनाओगे तो राइट पैनल में अपने आप चेंज हो जाएंगी सेटिंग्स। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट का एक फील्ड आएगा, उसमें जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन रहेगा वो फॉन्ट का रहेगा। उसमें काफ़ी, जैसे मेरे सिस्टम में काफ़ी सारे फॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्टॉल्ड होगा या फिर जो गूगल फॉन्ट पे अवेलेबल है वो जनरली यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी तुम्हें फॉन्ट सही लगे, या फिर डिफ़ॉल्ट ये यूज़ कर लो पॉपिंस, मतलब ये तो हर सिस्टम पे रहता ही है। इसके बाद बताते हैं फॉन्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं। फॉन्ट इंस्टॉल भी बता दे क्या, हाथ क्या था, मतलब बाद में बताना। हाँ बता दे, while we're waiting for others. क्या, हाउ टू बोल्ड द टेक्स्ट, वही सेकंड ड्रॉप डाउन, जो मतलब फॉन्ट के बाद एक सेकंड ड्रॉप डाउन होगा, उसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स होंगी। लाइक फर्स्ट क्लास अगर तुमने अटेंड करी हो तो उस दिन बताया था टाइप फेसेस वर्सेस फॉन्ट्स में, कि जो ये चीज़ है जो हम फर्स्ट ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज टाइप फेस, एंड जो उसके अंदर वेट है दैट इज फॉन्ट। तो हमें पॉपिंस का बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट करना है। फॉन्ट डाउनलोड करना सिखा देते हैं। तो लाइक जो अभी ड्राइव लिंक भेजा था उसमें एक फॉन्ट्स करके फाइल है, तो इसको डाउनलोड कर लो। मेरे पास One. ऑलरेडी डाउनलोड है तो वहाँ पे दिखा देता हूँ। हम्म, नहीं, अच्छा डिलीट कर दिया। कोई गूगल फॉन्ट खोल के कोई एक फटाफट फाइल डाउनलोड कर ले, जिप फाइल में तो टाइम लगेगा। मैं काफ़ी पॉपुलर, अगर कहीं कोई भी फॉन्ट चाहिए तो जनरली यहाँ पे मिल ही जाता है। तो जैसे मेरे को चाहिए प्ले फेयर डिस्प्ले, तो मैं इसकी फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे डाउनलोड फैमिली क्लिक कर दूँगा। फिर अपने डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे मेरे पास जिप फाइल आ गई। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है, और इसके अंदर लाइक काफ़ी सारी फाइल मिलेंगी तुम्हें। हो सकता है टीटीएफ फाइल मिले, ओटीएफ फाइल मिले, तो उससे मतलब कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, मतलब फिर इसके तो भी बाद डाउट अगर आ रहा है तुम्हें क्या क्या। कुछ अपनी फाइल में, तो ऊपर राइट हैंड अपर कॉर्नर में शेयर का बटन दिख रहा है ना, वहां पे शेयर पे जाके कॉपी लिंक करके यहाँ चैट में डाल दो, मैं देख लूंगा। मानव एक और बार बता दे हाउ वी डाउनलोडेड द हाँ, तो फॉन्ट। लाइक इस वाली साइट पे जाओ, गूगल फॉन्ट्स, या तो ब्राउज़र में सर्च कर लो या फिर लिंक भेज देता मैं। यहाँ पे एक सर्च बार दिखेगा, वहाँ पे सर्च कर लेना प्ले फेयर डिस्प्ले। तो उसके बाद सॉर्ट होके तुम्हारे पास दो फाइल्स बचेंगी। अब इसमें फर्स्ट वाली फाइल ओपन करके डाउनलोड फैमिली। नहीं, मुझे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, उसको जिप फाइल को खोल के एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद जब फॉन्ट्स तुम इंस्टॉल डाउनलोड करने करोगे अपने तो सिस्टम पे। डाउनलोड्स में इस टाइप की एक जिप फाइल आ जाएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके अंदर टीटीएफ फाइल होगी या ओटीएफ फाइल होगी, जो भी होगी, उन दोनों को सिलेक्ट करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। मैक का पता है तो किसी को बता दो उसमें क्या ऑल्टरनेटिव रहता है, शायद मैक में अलग होता है। मैक का कोई आइडिया नहीं है, बट सेम है, ठीक है, सही है। कूल। टैक्सीजम टू ब्लैक। हाँ तो चेंज द फॉन्ट कलर, दक्षता। टीटीएफ इज जस्ट अ फॉन्ट फॉर्मेट, लाइक सेव करने के लिए जो रहता है फॉन्ट्स को, दैट इज टीटीएफ। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें समझने का। इट्स जस्ट अ फॉर्मेट टू सेव द फॉन्ट्स।
TTF या OTF फाइल्स होंगी, उनको इंस्टॉल करना है. दैट इज ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड. बाकी यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. और टेक्स्ट का कलर जिसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो टेक्स्ट वाला फील्ड जब सेलेक्ट करोगे तो उसके नीचे एक फिल वाला ऑप्शन भी आएगा, वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा कलर रखना है तुम्हें। ब्लैक का कोड इज 00000, तो वो कर देना. तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, वो फिल मतलब वाले बाय ऑप्शन डिफ़ॉल्ट अगर में ब्लैक ही है. हाँ, साइड में जो 100% लिखा है दैट इज द ओपेसिटी. तो ये 100% होगा तभी वो पूरा ब्लैक दिखेगा, अदरवाइज उसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी. इट विल बिकम मोर ट्रांसपेरेंट. आयुष, या तो सारे डाउनलोड कर लो या फिर कोई भी एक कर लो फॉर द मीन टाइम. इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, तुमको कौन सा यूज करना है. सारे ही करो, इट इज बेटर. नेटफ्लिक्स तो द टेक्स्ट टेक्स्ट स्पेसिंग, स्पेसिंग. लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें। ये फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, ये लाइन हाइट का ऑप्शन है, और ये टेक्स्ट स्पेसिंग का है, लाइक फॉन्ट्स के बीच में कितना स्पेस रहेगा लेटर्स के बीच में। तो इसके साथ मतलब कर सकते हो तुम अभी के लिए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग्स रख लो जो इसमें दिख रही है। फॉन्ट डाउनलोड करना क्लियर है सबको, या उसमें अभी भी किसी को कुछ डाउट है? आई होप हो गया होगा आप सबका. है तो बता दो. कूल. तो अब सबका ये मैक में इंपोर्ट करने में, मैक का मेरे को आइडिया नहीं है. अमन का हो गया है आई गेस मैक में, तो अभिषेक आस्क हिम. हम सब भाई विंडोज वाले ही हैं. तो और सबका ये लाइक, आर यू डन अप टिल दिस पॉइंट? प्ले फेयर डिस्प्ले में तुमने 1969 आर्टिसनल फिलोसोफर लिख लिया है. जिसका स्पेसिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी दैट हैज बीन क्लियर्ड, आई होप. गुड. गुड गाइस, चल मैंने अब आगे का बता दे. तो इसके बाद फिर से मतलब टेक्स्ट लिखना है तो एक और टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करेंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो अभी तुम देखोगे कि जो पिछले वाले टेक्स्ट में सेटिंग्स करी थी वही सेम सेटिंग्स तुम्हारा रिपीट होगा। तो इसको चेंज करके हमें पॉपिंस करना है, और फॉन्ट साइज है 16, लाइन हाइट विल बी 20। तो इसमें अब फॉन्ट लिखना है। मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही कर देता इधर से। कुछ भी फिलर कंटेंट डाल सकते हो, जरूरी नहीं है तुम एग्जैक्टली सेम लिखो. कुछ भी लिख देना. नहीं तो ये डाल देता हूँ या चैट फिर ये में टेक्स्ट. हाँ. पोस्ट। लॉरम इस पर यूज कर सकते हो। ये भी डाल सकते हो जो तुम्हारे में दिक्कत है। लेट अस नो जब यहाँ तक हो जाए. कोई ऐसा है जिसने लॉरम इप्सम का नाम ना सुना हो? पहली बार सुन रहा हो लॉरम इप्सम क्या होता है? पहली बता बार दो कोई सुन है रहा तो हूँ, वैसे। लेआउट डिजाइन थोड़ा ना करते हैं। फॉन्ट साइज जब उसको सेलेक्ट करोगे फॉन्ट को, तो
पहले सबसे ऊपर टेक्स्ट राइट हैंड साइड पे जो पैनल आएगा उसमें टेक्स्ट नेम के नीचे टेक्स्ट का वेट है और उसके जस्ट साइड में लाइक रेगुलर या बोल्ड या सेमी बोल्ड जो भी है उसके राइट में एक नंबर लिखा होगा, दैट इज फॉन्ट साइज। उधर से चेंज कर सकते हो। अभिषेक, टेक्स्ट चैट में डाल दिया है ऑलरेडी। इफ यू वांट आई पेस्ट इट अगेन। लाइन स्पेसिंग, देखो दो ऑप्शन होता है मतलब स्पेसिंग के। एक तो तुम्हारा लेटर स्पेसिंग है जो ये वाला ऑप्शन है। लेटर स्पेसिंग क्या है, जैसे कि तुम देख सकते हो ए डी डी, इसके बीच में कुछ स्पेस है हर लेटर के बीच में, तो उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन चेंज करेंगे। और दिस इज लाइन हाइट, लाइक इन दो, एक लाइन हाइट का क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम लेंथ है किसी भी लेटर की इन द दैट फॉन्ट। तो जैसे लाइन हाइट मेरे को इंक्रीज करनी है तो उससे स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी लाइंस के बीच में। ठीक है, हो फिर जाए आगे तो चलो। बता देना, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स तो भी बता देना। पांच छह लोग और रिस्पॉन्ड कर दो, we'll move forward then. कंटिन्यू कर मानव। हम्म। तो इसके बाद हमें बनाने हैं ये दो स्वॉचेस। तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे वही सिमिलर, और एक अब क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल बनाएंगे। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारी लेंथ, हाइट और विड्थ है वो सेम रहेगी। हम कितना भी इंक्रीज कर ले, कितना भी ड्रैग कर ले, वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगी। बेसिकली स्क्वायर बन जाएगा अगर तुम शिफ्ट करके हाँ, ड्रैग करते हो तो, शिफ्ट लाइक प्रेस बहुत करके। सही है। अब जैसे राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि राउंडेड कॉर्नर्स है, तो जैसे पहले वही राउंड किया बस, था, सिमिलर प्रोसेस। इस बार मतलब सबका सेम है तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो सबका चेंज हो जाएगा एक साथ। शॉर्टकट फॉर स्क्वायर इज आर, और आर प्रेस करने के बाद शिफ्ट दबा के वो करना, शिफ्ट दबा के ड्रैग करना टू मेक द रेक्टेंगल, उससे स्क्वायर बनेगा। Let us know when you've created two identical squares. Cool. अब इसके बाद सिमिलर प्रोसेस रहेगा कॉर्नर्स राउंड करने का, बट सिंस इस टाइम चारों कॉर्नर्स राउंड करने हैं तो यू डोंट हैव टू, मतलब वो फ्रेम वाला बटन दबा के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं करने की जरूरत है, सीधे यहीं से कर देना जैसे सर कर रहे हैं। दोनों स्क्वायर्स के कॉर्नर्स राउंड कर दो, कीप द रेडियस एज 8। Respond with a yes if you have done till here. या विल वेट, शुभांकित कर लो तुम अच्छे आराम से।
ओके, वी मूव फॉरवर्ड नाउ। तो इसके बाद दोनों स्क्वायर्स में कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये वॉच है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर से ग्रेडियंट उठाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब फिल वाला ऑप्शन आता है तो उस पर क्लिक करने पे टॉप पे एक ही सॉलिड का आएगा ऑप्शन, उसमें ड्रॉप डाउन में लीनियर सेलेक्ट कर लेना। फिर जो फर्स्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट करोगे उसमें ये ड्रॉप पर बटन सेलेक्ट कर लेना, ड्रॉप पर ऑप्शन, और वॉच में से कलर उठा सकते हैं फिर हम। लाइक मेरे को ये वाला ब्लू चाहिए, तो डायरेक्टली जब इस पर क्लिक करूंगा तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा वो। ये ग्रेडियंट हो गया, लाइक दिस इज थोड़ा वो। अगर तुम्हें सिंपली अभी वो करना है तो तुम नॉर्मल स्क्वायर्स हाँ, को मतलब कलर ही दे सिंपल दो। सॉलिड कलर भी कर सकते हो हाँ, डायरेक्टली, जैसे ब्लू सेलेक्ट कर लिया। अगर थोड़ा मतलब करना चाह रहे हो तो ऐसा ग्रेडियंट भी बना सकते ग्रेडियंट का प्रोसेस, जो स्क्वायर है उसको सेलेक्ट करो, फिल वाले ऑप्शन में जाओ, वहां पे सॉलिड की जगह लीनियर सेलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन मेन्यू से फिर ऊपर वॉच में जाओ टू पिक द कलर्स, लेफ्ट हैंड वाला वो सेलेक्ट करके ड्रॉपर से एक कलर सेलेक्ट कर लो, देन राइट हैंड वाला स्क्वायर सेलेक्ट करके ड्रॉपर का यूज करके दूसरा कलर सेलेक्ट कर लो। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इन दिस डिजाइन। तुम नॉर्मल सॉलिड कलर भी रख सकते हो, सो इतना वो मत करो, पैनिक। सिमिलरली दूसरे स्क्वायर में भी कलर फिल कर देना। सॉलिड ही कर लेते हैं मानव अभी। हैं। हाँ, फिल पे जाके ड्रॉपर पे जाके ऊपर जो रेफरेंस के लिए इमेजेस दी हैं उसमें से वो रेड वाला सिलेक्ट कर लो। दूसरा स्क्वायर भी रेड कलर में हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि हमने ग्रिड यूज करा, लेकिन स्पेसिंग थोड़ी अजीब लग रही है, काफी ज्यादा स्पेसिंग होगी। तो इसके या तो साइज से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर कभी कभी ग्रिड मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर थोड़ा डिजाइन में प्रॉब्लम हो रहा हो तो। हाँ, बेसिकली यूज योर कॉमन सेंस। ऐसा नहीं है कि अरे ग्रिड में है तो मैं तो ऐसे करूंगा, इतना ही स्पेस दूंगा। खुद का भी दिमाग लगा के देखो कि क्या सही लग रहा है क्या सही नहीं लग रहा। यहाँ तक हो जाए तो लेट अस नो। खत्म करते, काफी लेट हो चुका है ऑलरेडी। कंटिन्यू पर ज्यादा नहीं बचाना, बस जस्ट दिस लाइन बटन और वो ना। हाँ हाँ। तो इतना तो आ ही गया है इन लोगों को। नीचे का तुम लोग खुद बना लोगे कि हम बताएं अभी ये बचा हुआ भी पार्ट जो थोड़ा सा रह गया है? मेजोरिटी ऑफ द थिंग वी टोल्ड यू ऑलरेडी। और ये जो बटन है दैट इज बेसिकली एक रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट है। क्या तरह बना बस एक लोगे? रेक्टेंगल बना दिया है। बना लेंगे कह रहे हैं, दैट इज गुड, अच्छी बात है। या फिर किसी को डाउट हो तो डिस्कॉर्ड पे आ ही जाना, बता ही देंगे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ, टैग कर देना हम में से किसी को भी, तुमको बता देंगे। और टास्क के बारे में बता दो उनको फिर। हाँ, तो टास्क क्या करना है, इसी ऐप को आगे मतलब पूरा कंप्लीट करना है। तो इसमें बची हुई कुछ स्क्रीन्स। स्क्रीन्स हैं, जैसे कि एक ये हमने सिर्फ ऊपर का पार्ट बनाया जो एक स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन स्क्रॉल करने के बाद जो जो आएगा वो भी बनाना है। और एक कार्ड का बनाना है स्क्रीन, और एक डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीन बनाना है। तो यहाँ तक स्क्रीन बनानी है। कॉलम हटाते कैसे, कॉलम हटाने के लिए क्या करेंगे, फ्रेम सेलेक्ट कर लो, और जो लेआउट ग्रिड करा था उस पर एक आई आई बटन आएगा, उसको क्लिक कर दो बस। आयुष हाँ, स्क्रीन्स इसका स्क्रीनशॉट हम प्रोवाइड कर देंगे। पीएनजी फाइल्स उसी ड्राइव में अपडेट कर देंगे फॉर योर रेफरेंस। डोंट वरी, पीएनजी फाइल्स ही शेयर होंगी, फिर मैं फाइल नहीं देंगे हम तुम लोगों को कॉपी पेस्ट करने के लिए। हाँ, स्लाइड्स वीडियो वगैरह सब कुछ हो जाएगा। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है आई नो, और इसलिए 2 दिन दे रहे हैं, नॉट जस्ट 1 डे टू कंप्लीट द टास्क। यू हैव टू मेक द सेम फाइल। हाँ, रेप्लिकेट करना है एज ऑफ नाउ, अंशुल।
इतनी सारी स्लाइड्स बनानी है, 2-3 स्क्रीन्स। देखो 2 दिन का टाइम तुमको दे रहे हैं तो सारी स्क्रीन्स बन जाएंगी वैसे। आइडिया तो तुम्हारे पास है ही ना क्या बनाना है, तो मेरे ख्याल से इतना तो टाइम नहीं लग जाए। और वैसे भी वैसे भी इतना डिटेल्ड नहीं है, मेजर टेक्स्ट ही है मैक्सिमम तो। या फिर कम कर देते 4 या ट्राई 5। करना कि जितना मैक्सिमम कर सको, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर देखते हैं एक्सटेंशन का, अगर समझ में आएगा तो। मैक्सिमम लाइक मिनिमम 4 तो बना ही लेना। ये बटन कैसे बता ही देते हैं। तो बटन के लिए क्या करना है, वही जो अभी करा था, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना, और जैसे कि और उसको कलर दे देना, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख देना। टेक्स्ट बस प्लेस कर देना, बन बटन गया बन तुम्हारा जाता बटन। हाँ, जितना एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने का ट्राई कर लेना, ज़्यादा चेंजेस मत करना। पॉइंट और कीप इन माइंड अच्छे से वो करेंगे इसमें। बाकी विंग जैसा नहीं होगा कि सबको पॉइंट्स मिल रहे हैं। जितना अच्छे से रेप्लिकेट करोगे, जितना अच्छे से बनाओगे, उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। तो कीप दैट इन माइंड। है। ये वायर फ्रेम नहीं, ये हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम है, मतलब डिज़ाइन है ये these are the बेसिकली। final screens, UI design, हाँ। visual design exactly. हेक्स कोड ऑफ बटन कलर वो तुम उससे कर सकते हो। मैं ये सारी स्क्रीन्स का स्क्रीनशॉट उस ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, तो वो कर लेना कलर पिकर से। वाइट वाइट कलर कलर कैसे हुआ कैसे? टेक्स्ट का? कलर में जाके फिल में जाओगे, व्हेन यू सेलेक्ट द टेक्स्ट तो फिल का ऑप्शन आएगा इधर, उस पर क्लिक करके जैसे रेक्टेंगल्स का कलर चेंज करते हो वैसे ही टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देना। और गाइस इन स्क्रीन्स को एज क्लोज एज पॉसिबल रेप्लिकेट करना है, और ये तुम मान लो कि इन स्क्रीन्स को एज इट इज रेप्लिकेट करना पॉसिबल है। सो पूरा ट्राई करो, और जो भी डाउट्स आते हैं डिस्कॉर्ड पे पूछते जाना कि इसको एज इट इज कैसे बनाना है। क्योंकि अभी लाइक और ऑलमोस्ट करके ही दिखाया है तुमको हम लोगों ने। बटन सिंपली रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल से बनाया नित्या। विच फोर लाइक रेक्टेंगल देखो स्क्रीन्स और तुम। उसके ऊपर टेक्स्ट। वी विल टेल यू सुशांत। जो ड्राइव लिंक शेयर करियो उसी में स्क्रीनशॉट्स अपडेट कर देंगे हम, या फिर जो फिग्मा टाइम फाइल बैटर कैसे? हाँ बोलो। टाइम बैटरी कैसे, ये तो तुमको दिया हुआ है ना, ये तो स्टेटस बार प्रोवाइड किया है हमने यूआई एलिमेंट्स में। हाँ तो कोई बात नहीं नीतीश, वॉच चेंज करने में कितना टाइम लगना है यार, कर देना चेंज। हाउ टू रिमूव ग्रिड, जब तुम वो फ्रेम सेलेक्ट करोगे उसके बाद जो लेआउट ग्रिड है उधर एक आई का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ग्रिड हट जाएगी, वापस क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगी। कलर ऑफ स्टेटस बार अच्छा वो जो ऐसा करके बता दो इसको। स्टेटस बार सेलेक्ट कर लेना, और उसमें फिल वाला ऑप्शन अभी ब्लैंक हिडन होगा, उसको ओपन करना, और कुछ भी लाइक ब्लैक कर देना, और उसकी ओपेसिटी कम कर देना, लाइक 8 कर दो, 10 कर दो, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ग्रिड का सिग्निफिकेंस, ग्रिड बेसिकली हेल्प्स यू इन अलाइनिंग द एलिमेंट्स प्रॉपरली और उनके स्पेसिंग में काम आता है। इसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्स और इतना झंझट नहीं था तो तुमको इतना नहीं लगा। बस इसमें बेसिकली मार्जिन्स में यूज हुआ था ग्रिड, बट जब बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं तो ग्रिड बहुत काम आता है। व्हाट कॉलम आर यू टॉकिंग अबाउट रितिका? बॉर्डर नजर आ रहा है ब्लू स्क्वायर पे, कौन सा? एक सेकेंड। बॉर्डर वैसे स्ट्रोक से आता है, या फिर एक और रेक्टेंगल बनाना थोड़ा सा बड़ा साइज का, दो दो के गैप का। मतलब जैसे सपोज अगर इस रेक्टेंगल के डायमेंशन 16 by 16 है, उसको 17 by 17 या 18 by 18 करना, जैसे भी सूट करे, और उसमें से फिल हटा के खाली स्ट्रोक रख देना। स्ट्रोक रिमूव नहीं कर दो, स्ट्रोक ऐड कर दो अमन।
फिल रिमूव कर दो। रितिका, आई डेंट गेट योर डाउट। या तो डिस्कॉर्ड पे आ जाना थोड़ी देर बाद, या फाइल का लिंक शेयर कर दो, एक बार चैट बॉक्स में देख लेंगे क्या बोल रही हो, या अनम्यूट कर दो, अनम्यूट करके पूछ लो क्या कहना चाह रहे हो। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, डिस्कॉर्ड पे पूछना है, मतलब फाइल शेयर करनी है, रिव्यू करानी है, जो भी है बता दो। इट्स गेटिंग क्वाइट लेट। टास्क का क्लियर नहीं है तो वो पूछ लो। जो भी 4 स्क्रीनशॉट्स है वो तुम्हारे ड्राइव लिंक में कर देंगे हम अपडेट। वी आर वेटिंग टिल 45 11:45 तक वेट कर रहे हैं मैक्स टू मैक्स। तब तक बता दो बॉर्डर वंस मोर, जो उसके अराउंड, जो टील वाले स्क्वायर के अराउंड बॉर्डर क्या है उसके बारे में बात कर रहे हो युवराज। हाँ, एक रेक्टेंगल बनाओ जिसका, एक स्क्वायर बनाओ जिसके डायमेंशंस जो ओरिजिनल स्क्वायर है टील कलर का उससे ज्यादा हो, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। जैसे 40, अगर नीचे वाला 40 है तो इट शुड बी 42 by 42 या 41 by 41, जैसे भी हो। तो और उसमें से फिल का जो ऑप्शन है उसको माइनस कर दो और स्ट्रोक का ऑप्शन प्लस कर दो। एक बार इनको बना के बॉर्डर बना के बता दियो मानव। हम्म। तो क्या करेंगे, ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लो और इसी पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी उसको कॉपी पेस्ट कर लो, और इसको जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उस पे जाओ, फिल हटा दो उसमें से और स्ट्रोक ऐड कर दो। फिर स्ट्रोक का कलर चेंज कर देना और इनसाइड, ये इनसाइड ही रहने दो या फिर आउटसाइड कर दो इसे, और इसका हाइट बढ़ा दो, लाइक 2 पॉइंट्स बढ़ा दो, और इस दोनों को सेंटर लाइन कर दो। लाइक मैंने 2 पॉइंट्स इंक्रीज करा तो इस साइड 2 इंक्रीज हो गए, नीचे भी 2 इंक्रीज हो गए, तो मेरे को बस 1 पॉइंट ऊपर और 1 पॉइंट साइडिंग वो शिफ्ट करना है, तो मैनुअली भी कर सकते हो। तो स्ट्रोक का क्या और यूज है इसमें? अभी आपने जो स्ट्रोक किया, स्ट्रोक का यूज स्ट्रोक ये का था, जैसे मतलब आउटलाइन होता है एक तरीके से, इन लेमैन टर्म्स स्ट्रोक इज आउटलाइन, फिल तो इज जो आपने अंदर। अभी उसी, एक्सक्यूज मी, आपने अभी उसी पिक्चर रेक्टेंगल को कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, और फिर जब आपने स्ट्रोक किया तो जो न्यू रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ था वो बेसिकली पिछले वाले का बैकग्राउंड बन गया, यही ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ पिछले वाले का बैकग्राउंड थोड़ी बना। मीन्स दैट बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर बन गया। स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन होता है। अगर तू उसको कहीं और भी लेके जाता ना, जैसे मानो मूव करिए उसको, ये ऐसे आउटलाइन रहेगा। इट विल बी आउटलाइन ऑफ अ स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि उसी का आउटलाइन बनेगा। जो भी तुमने शेप है, अगर तू सर्कल को सिलेक्ट करके उसमें से फिल हटा के स्ट्रोक करता तो वो एक सर्कुलर आउटलाइन बन जाती। आई होप दैट इज क्लियर। नहीं है तो पूछ लो फिर से, कंफ्यूज हो गए हो तो। एक और पूछना था, वो हाँ वो ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, मतलब कुछ हाफ एन आवर पहले पढ़ाया गया था उसे। हाँ, ये जो साइड में आपने जो वाइट पेज पे वो बॉर्डर रेक्टेंगल बनाया है जिसका उसका वो जो शैडो दिख रहा है मुझे पीछे, हाँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, नहीं, जूम जूम अप कीजिए, जूम, हाँ, जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट ये साइड, यस यस यस। हम्म, ये आपने कैसे किया था वो समझ में नहीं आया था, जो पीछे शैडो दिख रहा है उसका। ठीक है। तो क्या करा था ना, जैसे ये सेलेक्ट कर लोगे रेक्टेंगल, तो यहाँ पे एक इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा। इफेक्ट्स में जाके अगर प्लस करोगे तो ड्रॉप शेडो एक नाम का ऑप्शन आएगा। उसका मतलब है कि एक शेडो जो प्रोजेक्ट होगी उस शेप की, तो उसकी सेटिंग्स में जाके तुम चेंज कर सकते हो। लाइक एक्स अगर इंक्रीज करोगे तो शेडो तुम्हारी राइट शिफ्ट होगी, डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगी, और वाई को डिक्रीज करोगे तो ऊपर शिफ्ट होगी, और इंक्रीज करोगे तो नीचे, इस टाइप से। ओके सर, थैंक यू।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर वो जो मैंने अपना ग्रिड बनाया कॉलम वाला, हाँ, सर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, थोड़ा इजी रहेगा। इसको अब स्क्रीन क्या शेयर करना वाले है ना, ये डिस्कॉर्ड पे आ डाउट जाओ। सेशन में पूछना। अभी थोड़ी ओके देर में सर, ओके सर। डिस्कॉर्ड चलता है। जिसको भी स्क्रीन शेयर करनी है डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकता है। सर वो मेरा टेक्स्ट कॉपी करने में वो प्रॉब्लम आ रहा था, जो 1969 फिलोसोफर के नीचे नहीं है जो पैराग्राफ, सर मैंने उसको हाँ कॉपी हाँ, किया था चैट बॉक्स से और मैं पेस्ट कर रहा था, तो वो सिर्फ एक ही रो में आ जा रहा था, मतलब इस ग्रिड ग्रिड के बाहर चला जा रहा था, तो फ्रेम इसके के लिए क्या बाहर करना चला है जा ना, रहा था। इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, तुम्हें ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली ये ऑटो विथ वाला सेलेक्ट होगा, तो इसको चेंज करके फिक्स साइज कर देना। और इसको अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जो भी तुम्हें रखना है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रैग करके रिसाइज कर लेना। टेक्स्ट ओके अकॉर्डिंगली सर। वो मोल्ड होके ऐसा हो जाएगा। और सर ये आउटलाइन वाला समझना था एक बार। हाँ, अभिषेक, अगर कोई डाउट नहीं है तो द क्लास इज ऑफिशियली ओवर। जिसको डाउट है वो रुक सकता है। तो स्ट्रोक का क्या करा ना हमने, जैसे कि हमें ये सेलेक्टेड दिखाना था कि ये जो स्वाद है ये सेलेक्टेड है, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रोक बना दिया इसके अराउंड टू डिपिक्ट दैट इट इज सेलेक्टेड। तो उसके लिए क्या करा हमने, जो बाहर वाला रेक्टेंगल था उसकी जस्ट एक कॉपी बना ली और उसमें से फिल हटा के एक स्ट्रोक ऐड कर दिया बस। और स्ट्रोक की कुछ वैल्यू दे दो, लाइक कलर। जैसे हम पूरे ऐप में ये वाला प्राइमरी कलर यूज कर रहे हैं, तो मैंने ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, इसकी इंक्रीज कर दो थोड़ी साइज, जिससे वो बीच में गैप आ जाए। और विड्थ इंक्रीज कर दो, साइज तो हो गया इंक्रीज, बन गया तुम्हारा स्ट्रोक। सर हमने एक और रेक्टेंगल बनाया इससे थोड़ा बड़ा और उसमें फिल हटा के स्ट्रोक कर दिया, हाँ, या फिर सेम रेक्टेंगल से ही हो गया था। नहीं नहीं, एक उसका कॉपी बनाया फिर उसके ऊपर चेंज करें। मतलब थोड़ा सा बड़ा बना दिया उससे और उसमें से हाँ हाँ, फिल को। ओके मतलब सर। बेसिकली तुम्हें ये गैप चाहिए था ना बीच में, जस्ट उसके लिए एक और बनाया। अगर सेम उसके ऊपर चाहिए तो उसका स्ट्रोक लगा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक अगर मैं ये हटा के आउटर वाला, सिर्फ गैप नहीं चाहता मेरे को, सिर्फ इसके ऊपर स्ट्रोक चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसमें स्ट्रोक ऐड कर दूंगा, तो भी काम हो जाएगा मेरा। ओके सर। सर और आपका जो ग्रिड है कॉलम वाला, सर हम्म, मेरे उसमें भी 4 रोज ही हैं, पर हम्म, मेरा वाला वो पूरे फ्रेम को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और जैसे आपका वाला लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा स्पेस हाँ, तो स्पेस यहाँ दे रहा पे है ना। बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। मार्जिन है, गटर है। तो मार्जिन क्या करता है ना, वो लेफ्ट और राइट में जो स्पेस है दैट इज मॉडिफाइड बाय मार्जिन। तो मार्जिन चेंज कर देना, और इन दोनों के जो हर कॉलम के बीच में जो विड्थ गैप होगा दैट इज डिटरमाइंड बाय गटर। तो वो चेंज करके वैल्यूज तुम